وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مگن تھی، یوں شاید کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ایک ہی حالت میں کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے جو چاہا وہ کیسے مل گیا؟ وہ بے یقین تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر کن حالات میں ہوئی؟ وہ تقدیر کے اس کھیل کو دیکھ کر حیران تھی۔ کیا قسمت ایسی بھی بدلتی ہے؟ تو عارش حسان، تم میری زندگی میں شامل بھی ہو گئے، کسی بن مانگے دعا کی طرح۔ ابھی تو تم آنکھوں میں خواب کی طرح اترے تھے، وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ عارش حسان سب سے مقبول چینل کا مشہور اور معروف اینکر تھا، جس کا آج کل ہر جگہ چرچا تھا۔ اتنا حسین و وجاہت سے بھرپور، جس کی ذہانت پورے ملک میں مشہور تھی، آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ کیا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی؟ اللہ نے اس کی ساری دعائیں سن لی تھی، یا پھر ایک نئی آزمائش اس کی زندگی میں باقی تھی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ رات آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی اور اس کی سوچیں ماضی میں سفر کر رہی تھیں۔ حسان صاحب جب آفس سے آئے تو ساتھ ہی سائمہ اور زرناش کو دیکھ کر نائمہ حیران ہوئیں۔ نائمہ، جاؤ پانی لے کر آؤ، کھانا بھی لگواؤ، اور ہاں، انیکسی صاف کروا دو، آج سے یہ لوگ وہی رہیں گی۔ نائمہ فوراً اٹھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ حسان صاحب نے پریشان سی زرناش کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آسمہ حسان کی اکلوتی بہن تھی، جو ان سے حیثیت میں تو کم تھی مگر اپنے گھر میں خوش تھیں، لیکن 2 ماہ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی، اور حسان صاحب بے خبر تھے۔ وہ تو آج آسمہ نے کال کی تو وہ اپنے گھر لے آئے۔ انہیں افسوس بھی تھا کہ بہن کو اس حالت میں اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ تو خبر رکھتے مگر اچانک ایک میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، کل ہی واپس آئے تھے۔ نائمہ بیگم نے کھانا لگوا دیا تھا، حسان صاحب نے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی آسمہ اور زرنش کی دل جوئی کر رہی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ ڈائننگ ہال میں کوئی داخل ہوا۔ حسان صاحب فوراً اٹھے۔ او مائی جینٹل مین، کیسا رہا انٹرویو؟ آنے والا عارش حسان تھا، حسان صاحب کا اکلوتا بیٹا۔ نیلی جینس پر بلیک شرٹ پہنے، جس کی آستینیں کہنی تک مڑی ہوئی تھی، چوڑی پیشانی جس پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے اور مغرور کھڑی ناک چہرے پر سج رہی تھی، ہلکی ہلکی داڑھی اور ڈارک براؤن ذہین آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، بالکل شاندار، آپ کے بیٹے کی طرح۔ وہ اب مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ رہا تھا اور حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اپنی خوشی میں اس نے اس طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ حسان صاحب کو بھی ابھی خیال آیا۔ بیٹا پھپھو سے ملو۔ السلام علیکم، گمبھیر لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ کتنا بڑا اور کتنا خوبصورت ہو گیا ہے بھائی صاحب۔ آسمہ جو اتنی دیر سے خاموش تھیں، اپنے بھتیجے پر نہال ہوئے جا رہی تھی، اور زرناش غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا امی کو چپ کروا دے، جن موصوف کی تعریف میں وہ رتب النسان تھیں، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بڑے مزے سے فوک میں کباب کا ٹکڑا پھنسا رہا تھا۔ حسان صاحب اور نائمہ بیٹے کی تعریف میں مسکرا رہے تھے۔ زرناش اس مغرور سے شخص کو دل میں ہی بہت کچھ بول چکی تھی۔ ٹام کروز کا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے خود کو، اور وہ ٹام کروز کا چھوٹا بھائی نیپکن سے منہ صاف کر کے اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ اور پھپھو اتنی ہی سی بات پر نہال ہو گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ نائمہ بھی اٹھنے لگی۔ میں ذرا کمرہ سیٹ کروا کر آتی ہوں۔ اب حسان صاحب زرناش کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا، دور سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو کچن سے آتی آواز سے سمجھ گئی کہ امی اٹھ چکی ہیں۔ اس کا روز کا معمول تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرتی اور صبح کی پہلی کرن کو دیکھتی، شبنم کے قطروں کی نمی کو محسوس کرتی، اپنے ہی گھر کے چھوٹے سے آنگن میں چہل قدمی کرتی اور اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب بنتی، یہ جانے بغیر کہ کچھ خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے، اور آج اس کے سارے خواب بکھرے پڑے تھے۔ آج اس نئی جگہ میں اس کی پہلی صبح تھی۔ وہ چہل قدمی کرنے کے غرض سے لان میں نکل آئی۔ اپنے چھوٹے سے آنگن کو دیکھ کر وہ اکثر سوچا کرتی کہ کاش وہ ہرے بھرے گھاس کی نمی کو محسوس کرے۔ کبھی کبھی یہ شکوہ زور سے کرتی تو ابو خفا ہوتے۔ زرناش، بہت بری بات ہے بیٹا، اللہ کو بات بات پر شکوہ کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ ابو کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا، جہاں تھوڑی بہت پریشانی سہی مگر خوشی اور سکون تھا۔ اپنا گھر اور باپ کا سایہ تھا۔ پل بھر میں سب ختم ہو گیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد لوگوں کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے کہ اپنے ہی گھر سے دربدر ہونا پڑا۔ زرناش، کیا کر رہی ہو؟ باہر آ جاؤ۔ امی کی آواز پر وہ خیالوں سے چوکی اور جلدی کچن سے ملحق لاؤنج میں آئی، جہاں ملازمہ ناشتہ رکھ رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زرناش، ناشتہ کر لو، پھر حسان بھائی سے تمہاری ایڈمیشن کی بات کروں گی۔ آسمہ نے کہا، امی ان کے بیٹے کا بیہیویئر کچھ عجیب نہیں تھا؟ آپ کی تعریف پر شکریہ بھی نہیں کیا؟ بیٹا اس کی عادت ہے، خاموش طبع سا بچہ ہے، اور پھر ہم لوگوں کا آنا جانا ہی کم تھا، اتنی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ امی ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ کاش میں آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کیا باپ کے چلے جانے سے سارے لوگ بدل جاتے ہیں؟ آخری بات کرتے ہوئے اس کی آواز رون گئی۔ آسمہ فوراً اٹھی اور گلے سے لگایا، بیٹا ایسے نہیں کہتے، ہمیں لوگوں سے کرنا بھی کیا ہے، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر کسی کی کیوں
क्यों फ़िक्र करे। हाँ, अल्लाह तो है, इसी ने तो इसको गलत लोगों से महफूज रखा, वरना घर के लालच में लालची ताया इसके अपने आवारा 35 साला शादीशुदा बेटे से शादी कर रहे थे, जिसकी बीवी 2 साल पहले इसे छोड़कर जा चुकी थी। तब ही इसने हसन मामू को कॉल करके सूरत हाल बताई और आज वो यहाँ थी। पता नहीं अब यहाँ कब तक रहना है और ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। वो नाश्ते के बर्तन धोते हुए मुसलसल सोच रही थी। आसमा अंदर कमरे में अपना सामान समेट सेट कर रही थी कि अचानक बेल हुई तो हसन साहब और नाइमा अंदर आए और इसका एडमिशन फॉर्म लाए थे। नाइमा भी दोनों से मुख्तलिफ सवाल कर रही थी। फिर वो दोनों थोड़ी देर बैठे और चले गए। जरनाश का एडमिशन हो गया था, वो BA कर रही थी। रोज़ कॉलेज इसको हसन साहब खुद छोड़ते, क्योंकि इनका दफ्तर रास्ते में पड़ता था और वापसी ड्राइवर ले आता। ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू हो चुकी थी। इस दौरान हसन साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसकी पढ़ाई का पूछना, रोज़मर्रा की बातें करना, और टॉम क्रूज़ के छोटे भाई से इसकी फिर मुलाकात नहीं हुई। हाँ, कभी कभी बालकनी से इसे नज़र आ जाता। इसने अम्मी से सुना था कि वो किसी चैनल में टॉक शॉक करता है, मगर इसने अब तक नहीं देखा था। अभी भी वो अपने कमरे की बालकनी के पास अपनी किताब लेकर खड़ी थी कि नीचे नज़र पड़ी तो वही टॉम क्रूज़ का भाई मतलब आरिश हसन गाड़ी से उतरा। इसके साथ कोई लड़की भी थी, शायद इसकी कज़न थी, खाला की बेटी। अब वो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था तो इसके बाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल इसे और हसीन बना रहा था। क्या कोई इतना मुकम्मल हो सकता है? ज़रनाश की नज़र वहीं टिकी थी। अब वो वहाँ से जा चुका था, मगर ज़रनाश के दिल में रह गया था। ये क्या हो रहा था? इसे जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आनिया किचन में थी, मगर सोच एनेक्सी के बराबर दूसरे पोर्शन में घूम रही थी। इसको शुरू से मामू की फ़ैमिली पसंद थी। हसन साहब ने अपना लेदर का कारोबार शुरू किया था, तो जो तरक्की करके फैलता चला गया और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी बहन की शादी हैदराबाद में कर दी, जो माली एतबार से कमज़ोर थे मगर अच्छे इंसान थे। हैदराबाद से कराची के सफ़र की वजह से इनकी मुलाकात कम होती थी। फिर जरनाश की तालीम की वजह से जाना कम हो गया। कभी हसन साहब भी आके मिल लेते। फिर आरिश मास कम्युनिकेशन की डिग्री के लिए लंदन चला गया, इसीलिए आरिश को वो अब देख रही थी। और जब से वो यहाँ आई थी, आरिश हसन इसे बहुत मगरूर लगा था। एक तो इससे सामना बहुत कम होता और कभी नज़र आता भी तो मुकम्मल लाताल्लुक़ रहता। ये अपने आप में रहने वाला लड़का कब इसके दिल में आ बसा, इसे खबर भी नहीं हुई। अचानक इसको होश आया तो 12 बज चुके थे। कल इसका टेस्ट था और अब तक तैयारी नहीं थी इसकी। आज कल इसके साथ यही होने लगा था। कब वो आरिश हसन को सोचने लग जाती, इसे पता भी नहीं चलता। आरिश हसन इसकी ख्वाहिश बनने लगा था। ज़रूरी नहीं हर ख्वाहिश पूरी हो। कुछ ख्वाहिश हमारे दिल में हसरत बनकर रह जाती है, लेकिन इंसान के बस में कब होता है कि किसी को दिल से निकाला जाए या बसाया जाए। वो किचन में ही थी कि आसमा की आवाज़ आई। वो जब कमरे में गई तो इसकी चीख निकल गई। आसमा बेहोश पड़ी थी। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आंखें खोलें। इसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अस्पताल की राहदारी में बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। या अल्लाह मेरी अम्मी को बचा ले, या अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो। इसे ऐसा लग रहा था वो अकेली रह गई। अम्मी भी नहीं रही तो मैं क्या करूँगी रहकर? बस कर दो बेटा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दुआ करो सब ठीक होगा। हसन साहब ने इसके सर पर हाथ रखा। आपकी मरीज़ को होश आ गया है, हल्का सा अंजाइना अटैक था। अब वो ख़तरे से बाहर हैं, आप मिल सकते हैं। डॉक्टर ने यह खबर सुनाई तो जरनाश की जान में जान आई। इस वक्त वो दोनों आसमा के पास थे। भाई साहब मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास और मोहलत है। आसमा बोल रही थी। इनकी बात पर जरनाश तड़प कर रह गई। ऐसा मत कहो आसमा, बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं भाई, मुझे पता है मैं नहीं रह सकती। आप मुझसे एक वादा करें भाई। 2 दिन में जरनाश की शादी करनी, मैं इसकी खुशी देखकर मरना चाहती हूँ ताकि मुझे सुकून मिले। आसमा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आसमा खुद भी रो रही थी और इन दोनों के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। अच्छा तुम ठीक हो जाओ, मैं जरनाश का निकाह आरिश के साथ कर दूंगा। मैं तुमसे आरिश के लिए जरनाश का रिश्ता मांगता हूँ। जरनाश बेयकीनी के आलम में हसन साहब की तरफ देख रही थी, जबकि आसमा की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। इनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। सच कह रहे हैं भाई, मुझे बहुत खुशी है। बस तुम जैसे ही घर चलोगी मैं इन दोनों का निकाह करवा दूंगा। फिर जरनाश की तालीम मुकम्मल के बाद धूमधाम से रुखसती हो जाएगी। भाई साहब मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो आसमा? जरनाश मेरी भांजी है, बेटी है और इसके मुस्तकबिल का सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपनी बेटी ले रहा हूँ बस। अब कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाओ। भाई भाभी से पूछा आपने? और आरिश क्या वो मान जाएगा? आसमा के चेहरे पर खौफ था कि अगर आरिश ने मना कर दिया तो। नहीं आसमा, तुम इनकी फ़िक्र ना करो, वो मेरा मसला है। तुम निकाह की तैयारी करो। जरनाश इनकी बातों के दरमियान खामोशी से उठकर बाहर आ गई थी। आसमा हॉस्पिटल से घर आ गई थी और तबीयत भी संभल गई थी। वो बालकनी में खड़ी अपनी सोचों में उलझी हुई थी। आसमा दवाई लेकर सो रही थी। कितनी अजीब बात थी, जो इसके नज़दीक नामुमकिन था वो मुमकिन हो रहा था।
तो इसके दिल में नए अंदाज में धड़कना शुरू किया था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इसे खुश होना चाहिए या नहीं। और आरिश क्या वो ये फैसला कबूल कर लेगा? इसने तो इससे कभी बात भी नहीं की, कभी इसने खुद भी कोशिश नहीं की। एक तो वो इसके वजाहत से मरूब भी थी और इसकी फितरत में भी झिझक थी। इसके अंदर एतमाद की बहुत कमी थी और गर्ल्स स्कूल और कॉलेज लेने की वजह से भी मर्दों से बात करने की आदत नहीं थी। और आरिश वो इससे बात क्यों करता? वो तो आनिया जैसी लड़कियों के साथ ही अच्छा लगता है। आनिया भी शफाफ रंगत की हसीन लड़की थी, जबकि वो ये ख्याल आते ही वो आईने के सामने खड़ी हो गई। गंदमी रंगत पर स्याह बड़ी बड़ी आंखें जिसमें पलकों की झालर गिरी हुई थी। क्या थी वो? एक आम सी लड़की। और आरिश हसान जिसकी ख्वाहिश ना जाने कितनी लड़कियां करती थीं। इन्हीं सोचों में गरक थी कि हसन की आवाज़ आई। जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो कमरे से निकल गई। जी पापा, आपने बुलाया? स्टडी रूम में वो दाखिल हुआ जहाँ हसन और नाइमा दोनों मौजूद थे। हाँ बेटा बैठो। इस वक्त वो ट्राउज़र और वाइट शर्ट में मलबूस था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखें नींद और थकन की वजह से सुर्ख हो रही थी। नाइमा अपने बेटे को देख रही थी। कितना मुकम्मल था इनका बेटा, वजाहत से भरपूर। क्या हसन साहब जो फैसला कर रहे थे वो ठीक है? वो यही सोच रही थी कि हसन बेटे से मुखातिब हुए। आरिश, ये बताओ आज तक तुमने जो भी फैसला लिया अपने लिए, मैंने तुम्हें मना किया? तुम जर्नलिज्म लेना चाहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि मैं चाहता था तुम बिज़नेस की डिग्री लो। फिर तुमने मीडिया ज्वाइन कर लिया, मैंने करने दिया, जबकि मुझे अब बिज़नेस संभालने के लिए बेटे की ज़रूरत थी। लेकिन मैं चाहता था मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। मैंने कोई भी फ़ैसला तुम पर ज़बरदस्ती नहीं सौंपा, लेकिन मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा फ़ैसला कबूल करोगे? आखिर में वो अपने इकलौते सपूत को आस भरी नज़रों से देख रहे थे, जो खामोशी से इनकी इस तमहीद को समझने की कोशिश कर रहा था और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था कि वाक़ई इसने हमेशा अपने फ़ैसले खुद लिए हैं और बाप ने भी कभी मुखालफत नहीं की। बाबा, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं आपकी बात से इनराफ कैसे कर सकता हूँ? बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो, जज्बात में फैसला ना करो। नाइमा जो इतनी देर से खामोश थी बोली। हसन साहब एक नज़र इनको देखकर अपनी बात दोबारा शुरू कर चुके थे, जबकि नाइमा शोहर की नज़रों से ख़ाइफ़ हो गईं। बेटा मैं तुम्हारी शादी ज़रनाश से करवाना चाहता हूँ। ये एक जुमला था, लेकिन इस जुमले से इसके अंदर धमाके होने लगे। अजीब बेयकीन नज़रों से बाप को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वालिद साहब ने इसे चारों तरफ से ऐसा घेरा कि इसके पास फ़रार का कोई रास्ता नहीं बचा था और नाफरमानी इसकी तरबियत में शामिल नहीं थी कि बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता। सच था कि इसके वालिदैन ने कभी इससे कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार वो इसकी तरफ आस से देख रहे थे और इन आँखों को नाउम्मीद नहीं कर सका। इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम फ़ैसला बाप की मोहब्बत में कर दिया। इसके पास हाँ के सिवा कोई चारा नहीं था। इसके इकरार के बाद हसन साहब ने खुशी से बेटे को गले से लगा लिया। ये हुई ना बात, मेरे बेटे ने मुझे अपना कर्जदार कर दिया। वो खामोशी से लब बीजे खड़ा था जबकि नाइमा हैरान और परेशान थी। उन्होंने शोहर से एहतजाज करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी शोहर के आगे कभी नहीं चली। तो आज कैसे सुन लेते? हसन मोहब्बत करने वाले शोहर ज़रूर थे, मगर अपने फैसलों में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते थे। नाइमा को लगा शायद आरिश ना माने, मगर हसन साहब ने बात इस अंदाज में की कहीं इनकार की गुंजाइश थी ही नहीं। इसीलिए उन्होंने भी चुप साध ली। वो अपनी बहन की बेटी आनिया से आरिश की शादी करना चाहती थी, क्योंकि आनिया आरिश को पसंद करती थी और आरिश की भी अच्छी दोस्ती थी, मगर इसने ऐसी बात नहीं की थी कभी। अब नाइमा अपने शोहर की मर्ज़ी में राज़ी थी। उन्हें ज़रनार से कोई ज़ाती पुरख़ाश नहीं था। ज़रनाश और आरिश का निकाह था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ज़रनाश को सोचने का मौका ही नहीं मिला। घर में सादगी से निकाह का इंतज़ाम हसन साहब के लॉन में किया गया था और छोटा-सा स्टेज भी बनाया था, जहाँ ज़रनाश स्टाइलिश और थोड़े से काम वाले पिंक कलर की फ्रॉक में बैठी थी और दिल अनजानी सी खुशी से धड़क रहा था। निकाह के बाद थोड़ी देर के लिए आरिश को बुलवाया गया, साथ तस्वीरें ली गईं, फिर वो उठकर चला गया। इसके शो का टाइम हो रहा था। ज़रनाश की समातें किसी सरगोशी की मुंतज़िर रहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी खुशी पर ओस पड़ गई। इसको लगा था कि आरिश की मर्ज़ी और खुशी शामिल है, मगर आरिश का अजनबी रवैये ने खुशफ़हमी से निकाल दिया। अचानक वो अपनी सोचों से बाहर आई। वक़्त देखा तो आधे से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। अभी भी वो खिड़की से टेक लगाए खड़ी थी। फिर वो बिस्तर में आ तो गई, मगर बहुत सी सोचों ने इसे सोने नहीं दिया। रात जितनी रौनक वाली थी, सुबह इतनी भयानक। आसमा शायद अपनी बेटी की खुशी देखने के लिए रुकी हुई थी। अपनी बेटी के फ़र्ज़ से सबकदोश होते ही उन्होंने हमेशा के लिए आँखें मूंद लीं। ज़रनाश के लिए गहरा सदमा था। अभी तो वो आरिश की बेरुखी का गम नहीं मना पाई थी कि ज़िंदगी ने एक और इतना बड़ा गम दे दिया। अब आज आसमा की मौत को हुए चौथा दिन था। ज़रनाश की 3 दिन की बेहोशी के बाद आज हालत बेहतर थी। कमरे में लेटे हुए अपने गुजरे हुए माहों साल को सोच रही थी, क्या मेरी तरह कोई बदकिस्मत होगा? बचपन से भाई बहन जैसी नेमत से महरूम रही, फिर बाप भी चला गया तो माँ ने भी जल्दी की जाने में, और इसे इस शख्स के साथ बांधा गया जिसने इसे तसल्ली के 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। वो इससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? 2 आंसू इसकी आंखों से निकलकर दुपट्टे में जज्ब हो गए। अचानक इसे महसूस हुआ कोई पास खड़ा है, तो देखा हसन साहब थे। वो जल्दी से उठकर बैठी और आंसू पोंछे। बेटा अपना सामान रख लो, अब हमारे साथ तुम्हें रहना होगा, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हसन साहब ने इसके सर पर हाथ रखा और चले गए। नया ठिकाना, नई आज़माइश। वो गहरी सांस लेकर इनके पीछे चल दी। कहाँ गायब हो मेरे यार? आजकल
तो नज़र ही नहीं आ रहे। आरिश बहुत दिनों बाद जिम गया था तो तीनों ने इसे घेर लिया। आनिया, आरिश, ज़ुबैर और बिलाल चारों यूनी फेलो थे, अच्छे दोस्त भी। जबकि आनिया से कज़न का रिश्ता भी था, तभी इसकी बनती थी और इसमें आनिया का ज़्यादा हाथ था। हर जगह और हर वक्त आरिश के साथ रहती। आरिश की बेपनाह वजाहत ने थोड़ा मगरूर भी बना दिया था, इसीलिए किसी को कम ही लिफ्ट करवाता। आनिया आरिश के निकाह से बेखबर थी। वो अपनी बहन के पास दुबई गई हुई थी, जिसकी वजह से इसको निकाह का इल्म ना हो सका। आनिया की मम्मा ने भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी बेटी को तकलीफ होगी। बल्कि आरिश के किसी दोस्त को मालूम ना हो सका, सिर्फ ज़ुबैर को पता था, क्योंकि वह इसके बचपन का गहरा दोस्त था। आरिश, वाकई मैं कल से आई हूँ और तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की। अपने शोल्डर कट बालों को एक हाथ से झटकते हुए वो एक अदा से बोली। बिज़ी था तो पहले कौन सा तुम्हारे साथ रोज़ कॉल पर रहता था, ज़ुबैर ने बोलकर बिलाल के हाथ पर हाथ मारा। जबकि आरिश वही कातिलाना बेनियाज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा था और बाईं गाल पर डिंपल गहरा था। आनिया का चेहरा गुस्से और खफत से सुर्ख हो गया। क्या हुआ? वो अब मिस मुझे लगा शायद मैं दूर थी तो तुमने मुझे मिस किया हो। अपना रुख दूसरी तरफ फेर चुकी थी, जबकि आरिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ यार, सुना था तुम्हारी पुप्पो की डेथ हो गई है। बिलाल ने बात बदली कि माहौल ना ख़राब हो। हाँ, मुझे भी मम्मा ने बताया था, अफ़सोस हुआ बहुत। आनिया ने जैसे ताज़ियत करके जान छुड़ाई। तुम्हें और कुछ नहीं बताया तुम्हारी मम्मा ने? ज़ुबैर ने तंज़िया लहजे में आनिया से कहा, और वो आनिया को कोई ख़ास पसंद नहीं करता था, जो बिलावजह आरिश के गले का हार बनने की कोशिश करती थी। क्या क्या बताना था इनको? आनिया ने चौंक कर ज़ुबैर और आरिश की तरफ देखा, जबकि बिलाल भी तजस्सुस से इनकी तरफ मुतवज्जह हुआ और आरिश बेनियाज़ी से टेबल पर पड़ा गिलास घुमा रहा था, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। यही कि आरिश का निकाह हो गया है इसकी कज़न से। ज़ुबैर ने जैसे धमाका ही तो किया था और आनिया बेयकीन नज़रों से आरिश की जानिब देख रही थी। तुम तुम मज़ाक कर रहे हो? आरिश ये क्या कह रहा है? तुम क्यों चुप हो? आनिया अपने आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। सच कह रहा है ये। पापा ने मुझसे पहली दफ़ा कुछ मांगा था और मैं इनकार नहीं कर सका। आनिया से इसको मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो जानता था आनिया इसके लिए पागल है। कुछ भी हो, इसे अफसोस हो रहा था आनिया की हालत पर, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। और इसने आनिया से ऐसी कोई बात नहीं की थी जो वो लड़की इतनी उम्मीदें लगा बैठी थी। आनिया फ़ौरन वहाँ से उठकर चली गई, जबकि ज़ुबैर को खुशी हुई। इसके ख्याल में आरिश के लिए आनिया जैसी लड़की नामुनासिब थी। वो गई तो बिलाल फ़ौरन आगे आया। अरे वाह, क्या न्यूज़ है? चलो आरिश, तुम मिजाजी खुदा के ओहदे पर फाइज हुए हो, ट्रीट तो बनती है। बिलाल लाउबाली सा लड़का था, बस लाइफ को एंजॉय करना जानता था। ये तुम क्या आज उर्दू दान बने हुए हो? इतनी खालिस उर्दू मिजाजी खुदा ओहदा फाइज, वाह वाह। ज़ुबैर अपना सर धुन रहा था इसकी उर्दू में। बिलाल ने मुंह का जाविया बिगाड़ के कहा, कल दादा जान के पास गया तो इनके पास कोई किताब थी, कहने लगे पढ़ कर सुनाओ, तो बस 2 घंटे तक पढ़ा, अल्फाज जहन में रह गए। बिलाल के कहने का अंदाज इतना मासूमाना था कि ज़ुबैर और आरिश का कहका भी साख्ता निकला। जरनाश को यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान आरिश से इसकी मुलाकात नहीं हुई। वो मसरूफ़ रहता और जब भी घर आता तो जरनाश खुद को मसरूफ़ कर लेती। ये ठीक है कि पहली बार आरिश के लिए इसका दिल ज़रूर धड़का था, मगर ये सोच के आरिश ने ज़बरदस्ती निकाह किया वो राज़ी नहीं था। जरनाश को ज़िल्लत में धकेल देती। ठीक है, वो खूबसूरत नहीं थी, मगर इतनी बुरी नहीं थी कि कोई ज़बरदस्ती इससे रिश्ते पर राज़ी हो। अगर इसे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं भी इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि इसके आगे पीछे फिरूँ। इसके अना आगे आ गई और मोहब्बत कहीं पीछे रह गई। आज नाश्ते की टेबल पर आई तो वो नज़र आया। लगता है टॉम क्रूज़ के छोटे भाई को आज कोई काम नहीं जो घर पर नज़र आ रहे हैं। आओ बेटा, खड़ी क्यों हो? हस्सान साहब की नज़र पड़ी तो फ़ौरन इसे बुलाया। वो चौंकी और जल्दी से अंदर आई, क्योंकि फ़रार अब नामुमकिन थी। सभी इसकी जानिब मुतवज्जह हो गए। आरिश एक नज़र देखने के बाद दोबारा नाश्ते में मसरूफ़ हो गया, जबकि नाइमा जरनाश को नाश्ते के लवाज़मात देने लगी। नाइमा का रवैया इसके साथ बेहतर था, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। इसकी ज़रूरत का ख्याल रखती, मगर कभी बैठकर बात नहीं की, और वो खुद भी सोशल वर्क में मसरूफ़ रहती। ज़रनाश बेटा, आज आपका यूनी में पहला दिन है, घबराना नहीं, और तुम्हें आरिश छोड़ देगा। आरिश, इसको डिपार्टमेंट तक छोड़ कर आना और सही से गाइड कर देना। आरिश ने इस्पात में सर हिला दिया। इसका यूनी में एडमिशन हो गया था, अब वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था, मतलब कि इसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। और तो मौसूफ़ को पहले से पता था कि मेरे साथ जाना है, तभी घर पर नज़र आ रहे थे। यही सोचते हुए वो अभी उठ गई। अच्छा मामू मुमानी, चलती हूँ। जरनाश खुदा हाफिज़ कहती हुई आगे निकल गई। आरिश जो मोबाइल पर मसरूफ़ था चौंक कर खड़ा हुआ। क्या लड़की है, इसके साथ जाना है? इसे ही बगैर इत्तला दिए निकल गई। वो खड़ा सोच रहा था। जाओ बेटा, बाहर इंतज़ार कर रही है वो। हसन साहब इसे होश में लेकर आए। जब वो पोर्च में पहुंचा तो मोहतरमा वहीं खड़ी थीं। लेमन कलर के घुटनों तक आती फ्राक और सर पर लेमन कलर से ही सलीके से स्टाइलिश तरीके से स्कार्फ
सजाए चेहरे पर हल्की सी नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाए खड़ी थी। गंदमी रंगत पर सादगी और मासूमियत इसे जाज़िबे नज़र बना रही थी। आरिश हैरान था। वो तो समझता था कि ज़रनाश मिडिल क्लास की हर स्टाइल से आ रही बेवकूफ़ सी डरी सहमी सी लड़की होगी, मगर ज़रनाश का हर अंदाज़ आरिश को गलत साबित कर रहा था। इसके एतमाद में कमी थी, मगर हसन साहब ने इसका एतमाद बहाल करने में काफ़ी मदद की, और कुछ इस नए रिश्ते का एहसास था कि आरिश से इसे कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वो पूरे एतमाद से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठें। ये कहते ही इसने आगे का दरवाज़ा खोला और अपनी सीट पर बैठा। इसका हुक्म सुनते ही बगैर कुछ बोले वो भी आकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ने ही शायद ना बोलने की कसम खाई थी। समझता क्या है खुद को? अगर शक्ल अच्छी दे दी अल्लाह ने तो इसका क्या मतलब है कि दूसरों पर रौब चलाएगा? ज़रनाश गुस्से में दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। मेरा ख्याल है अगर आप ज़ोर से बोल लेंगी तो मैं भी अपनी तारीफ़ से मुस्तफ़ीद हो जाऊँगा। आरिश की आवाज़ से वो चौंक कर मुड़ी। बज़ाहिर सामने देखते हुए वो स्टीयरिंग में हाथ जमाए इससे मुखातिब था। वो गड़बड़ा गई। हाय अल्लाह! इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी बुराई कर रही? आपके बुड़बुड़ाने के अंदाज़ से। अब भी वो दिल में सोच रही थी कि आरिश का जवाब मौसूल हुआ। वो हकीकत में डर गई। कैसे सुन रहा है ये? बेसाख्ता इसने अपना हाथ मुँह पर जमा लिया ताकि अब वो समझ ना सके। ये देखते ही आरिश का कहका बेसाख्ता था। इसकी हंसी से खफ़त ज़दा होकर जल्दी से हाथ हटा लिए और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए शीशे की तरफ मुँह कर लिया। इसके बाद दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। यूं ही पहुंचकर दोनों ही साथ चलने लगे। बहुत सी नज़रें इनकी तरफ घूमी, कुछ की रशक ज़दा और कुछ की हैरत ज़दा। फिर कुछ लड़कियों के टोलों ने इसे घेर लिया। अरे ये तो आरिश हसान है, मशहूर न्यूज़ एंकर जो टाइम ऑफ अपडेट टॉक शो करता है। लड़कियां सेल्फी लेने खड़ी हो गईं। वो बमुश्किल जान छुड़ाकर इनके नरखे से बाहर आया। जरनाश दूर खड़ी दांत पीस रही थी। लड़कियां भी पागल हैं, पता नहीं कैसे टीवी में देखकर फिदा हो जाती हैं। तब वो आया। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? इस्लामिक। ठीक है चलो। वो इसके साथ ही रहा। तमाम काम करके इसे क्लास के पास छोड़ा क्योंकि बाबा का हुक्म था, और बाबा का हुक्म वो नहीं टाल सकता था। आज का दिन यूनी में बहुत थका देने वाला था, मगर दिल बहुत खुश था। सुबह के खुशगवार असरात इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। पहली मुलाकात काफ़ी खुशगवार रही। जितने मगरूर लगते हैं इतने हैं नहीं मौसूफ। चलो नए रिश्ते से ना सही मगर बात तो हुई। वो बालकनी में खड़ी मुसलसल आरिश को सोच रही थी, मगर सच तो यही है कि आरिश हसान ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। और कर भी कैसे सकते हैं? वो तो आनिया जैसी लड़की को पसंद करते होंगे। मैं इनके मेयार पर उतरती नहीं। ये सोच आते ही उदासी ने इसे घेर लिया। अब सोना मुश्किल था। आज आरिश घर आया तो सेल ऑफ था। जब चार्ज पर लगाकर ऑन किया तो मैसेजेस के नोटिफिकेशन आने लगे। चेक किया तो आनिया का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। ओह, इसको क्या हुआ? अच्छा खासा 2 दिन सुकून से गुजरे थे। आरिश को कोफ्त हुई। इस दिन के बाद से आनिया ने कोई रब्ता नहीं किया था। आज इतने मैसेज रीड किए बगैर ही मोबाइल रखकर फ्रेश होने चला गया। रात में सोने के लिए बिस्तर पर आया तो अचानक सोच कर वो ज़रनाश की जानी मुड़ गया, और आज की याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मगर दूसरे पल इससे जुड़ा रिश्ता याद आया तो लब भींच लिए और चेहरा अचानक ही संजीदा हो गया। आरिश ने अपनी लाइफ पार्टनर का एक खाका बनाया हुआ था। इसे मिडिल क्लास की घरेलू लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिनमें एतमाद की कमी हो, 10 लोगों को देखकर घबरा जाए। इसे सख्त कोफ्त होती थी ऐसी लड़कियों को देखकर, और ज़रनाश को इसने ऐसा ही देखा। आज यूनी में भी कितना घबरा रही थी लोगों को देखकर। पता नहीं पापा ने क्या देखकर इसको मेरे लिए पसंद किया। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि मैं इसे संभालता फिरूं। अचानक इसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। स्क्रीन को देखकर इसके मुंह का जाविया बिगड़ गया। अभी इसका बिल्कुल दिल नहीं था आनिया से बात करने का, मगर कुछ सोचने के बाद कॉल रिसीव कर ली। नहीं, मसरूफ़ था कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो अब इसके बात का जवाब दे रहा था। दूसरी तरफ आनिया कह रही थी, मुझे मम्मा ने बताया है कि ये निकाह तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हुआ है, और मैं जानती हूँ तुम ज़रनाश जैसी लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं हो। वो किस तरह तुम्हारे साथ सोसाइटी में मूव करेगी? आनिया इसके दिल की बात कर रही थी। कुछ भी था, मगर वो इसको बेहतर जानती थी। आरिश की मगरूरियत में इज़ाफ़ा हुआ। अब इसका मूड भी ठीक हो चुका था। वो आनिया के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। आनिया और आरिश की दोस्ती दोबारा से वैसी जारी थी। 2 दिन के शौक के बाद आनिया दोबारा आरिश के साथ नज़र आने लगी। आज भी ज़रनाश यूनी से वापस आकर शाम में टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी कि आनिया अंदर आई। शोल्डर कट बाल, बगैर आस्तीन के, शॉर्ट शर्ट और तंग जीन्स के साथ, चेहरे पर मेकअप की तह जमाए, अदाए बेनियाजी के साथ सोफे पर बैठ चुकी थी। ज़रनाश को मुकम्मल अंदाज किए वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुकी थी। ज़रनाश भी एक नज़र देखकर रिमोट से चैनल बदलने लगी। हूँ प्लास्टिक की छिपकली पता नहीं खुद को सबा कमर समझ रही है। खैर मुझे क्या। ज़रनाश दिल ही दिल में इसकी शान में कसीदे पढ़ रही थी। इसी वक्त नाइमा अंदर आई। अरे मेरी बेटी आई है, साड़ी का पल्लू संभाले। वो अब आनिया से गले मिल रही थी। ज़रनाश का दिल ख़राब हुआ तो वो वहाँ से चली गई। अब वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी। दिल बहुत बुरा हो रहा था इसका। दिल चाहा ढेर सारा रोए। आरिश से भी इस दिन के बाद दोबारा बात नहीं हुई।
एक दो दफ़ा साथ यूं ही गई भी तो दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो दोबारा अपने खोल में बंद हो चुका था। ज़रनाश भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। आज आनिया को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचों में गर्क थी कि हसन साहब की आवाज़ आई, क्या सोच रही है मेरी बेटी? अब वो भी इसके साथ चल रहे थे। फिर दोनों लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे। कुछ नहीं मामू, ऐसे ही। हसन स्टडी रूम में थे। खिड़की से ज़रनाश को परेशान देखा तो चले आए। कुछ तो है बेटा, अब अपने मामू से भी छुपाओगी? मैं बताऊँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह आनिया है? हसन साहब ने कहा, क्योंकि कुछ देर पहले आरिश के साथ बाहर गई थी और तब से ज़रनाश की बेचैनी हद से ज़्यादा थी। इतने सही अंदाजे पर वो शर्मिंदा हो गई और कुछ बोले बगैर नज़रें झुका ली। बेटा मुझे माफ़ कर देना, शायद मैंने फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी की। आरिश का रवैया मेरी नज़रों के सामने है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मामू, आप क्यों शर्मिंदा हैं? मेरी किस्मत में आरिश का नाम था, वो तो होना ही था। किसी तरह भी आपका कोई भी पछतावा इसको बदल नहीं सकता था। ज़रनाश ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा फिर भी मैंने सोचा है तुम लोगों की रुखसती कर दूं और आरिश को समझाऊं। रिश्ता बनाया है तो इसे निभाए भी, ताकि आरिश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और आनिया इसका पीछा छोड़ दे। हसन साहब ने कहा। तभी ज़रनाश जल्दी से बोली, नहीं मामू, आप मुझसे वादा करें, आप आरिश से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा इस तरह कब तक चलेगा? वो और तुमसे दूर हो जाएगा। नहीं मामू, मैं नहीं चाहती आरिश ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता निभाए। और मुझे अल्लाह पर यकीन है, जिसने मुझे का नाम दिया है, एक दिन उसका दिल भी ज़रूर बदलेगा। जिसका नाम मेरे साथ लिखा है, इसका साथ भी ज़रूर लिखा होगा। मैंने हमेशा अल्लाह से इस चीज़ का शिकवा किया, जो मेरे पास था ही नहीं। मुझे अल्लाह से शिकवा रहता है कि इसने मुझे इकलौता क्यों पैदा किया, भाई-बहन क्यों नहीं हैं मेरे? फिर अब्बू के जाने के बाद यही शिकवा करती कि मेरे बाबा क्यों चले गए? अल्लाह को मेरा शिकवा बुरा लगा मामू, मेरे पास माँ भी नहीं रही। अब मैं कोई रिश्ता खोना नहीं चाहती मामू, मेरे पास आप हैं, मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कभी अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं किया, अब चाहती हूँ। अब सोचती हूँ तो बहुत शर्मिंदगी होती है। अल्लाह के सामने सब कुछ था मेरे पास और आरिश का नाम मेरे लिए काफ़ी है मामू। इनका नाम मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत है। देखिएगा मैं अल्लाह से मांगूंगी तो वो ज़रूर मेरे पास ही आएंगे। बोलते हुए इसकी आवाज़ में नमी थी। वाकई इसने बहुत कुछ खो दिया था, अब कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं थी इसमें। अरे मेरी बेटी कहती है तो मैं नहीं करूँगा अभी रुखसती की बात। वैसे खुशी हुई तुम्हारी आंखों में इसके लिए मोहब्बत देखकर, और मैं जानता हूँ मेरी बेटी की मोहब्बत ज़रूर जीतेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। वो नालायक खुद आएगा तुम्हारे पास। ये कहते ही उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और चले गए। वो जो शर्मिंदा थे कि शायद उन्होंने गलत फैसला कर लिया। अब ज़रनाश के दिल में आरिश अब ज़रनाश के दिल में आरिश के लिए मोहब्बत देखकर मुतमिन थे कि इनका फ़ैसला दुरुस्त था। ज़रनाश की मोहब्बत एक दिन ज़रूर आरिश को जीत लेगी। नाइमा की एक मीटिंग से वापसी पर इनकी गाड़ी ड्राइवर की गफलत की बिना पर सामने आती गाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे ने सबको परेशान कर दिया था। इस दौरान आरिश और हस्सान के अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, जबकि ज़रनाश पर घर की जिम्मेदारी आ गई। अस्पताल खाना भिजवाना भी हस्सान साहब और आरिश के काम अपनी निगरानी में करवाना सब इसी की जिम्मेदारी थी। ये तमाम काम नाइमा करती थी। मुलाजिम के होने के बावजूद वो अपने शौहर और बेटे के काम खुद भी करती और मुलाज़मा से अपनी निगरानी में करवाती थीं, जो अब ज़रनाश बखूबी तमाम काम अंजाम दे रही थी। इस दौरान एक अच्छी बात ये भी हुई कि आरिश से भी इसकी रस्मी बात हो जाती। दोनों ज़रूरत के वक़्त एक दूसरे को मुखातिब कर लेते। जैसे अभी वो ऑफ़िस से घर आया, क्योंकि नाइमा के लिए परहेज़ी खाना लेकर जाना था। फ्रेश होकर किचन में आया, जहाँ ज़रनाश यखनी तैयार कर रही थी। ज़रनाश, अगर आपको ज़हमत ना हो तो एक कप चाय मिल सकती है? जाने क्या था इसकी आवाज़ का असर, या फिर पहली बार ज़रनाश अपना नाम इस संगदिल शख्स से सुनकर घबरा गई थी और यखनी प्याले में डालते हुए छलक पड़ी और इसके हाथ में गिर गई। वो तड़प ही तो गई थी। तकलीफ से अपना हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की जानिब मुड़ी कि आरिश जो लाउंज की तरफ मुड़ रहा था, आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसकी तरफ आया। जल्दी से इसका हाथ पकड़ा। पागल हो गई हो लड़की, क्या कर रही हो ये? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इसका हाथ पकड़े ही वो कैबिनेट से बरनाल निकालने लगा। अब वो नरमी से मरहम लगा रहा था। वाइट शर्ट के साथ जीन्स पहने, ब्राउन आंखों में गुस्सा और फिक्रमंदी झलक रही थी। मगरूर चेहरे पर सजी दाढ़ी और बाल अब तक नम थे, शायद नहाकर आया था। परफ्यूम की खुशबू ज़रनाश पर हावी होने लगी। वो इसके बहुत करीब था, इतना कि वो हाथ बढ़ाकर इसे छू सकती थी। इसकी तकलीफ तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब वो अपना हाथ धो रहा था, जबकि ज़रनाश बुत बनी इसकी पुश्त तक रही थी। कितना खूबरू और वजाहत से भरपूर शख्स था ये, हर तरह से मुकम्मल शख्स, जो इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। पता नहीं इस शख्स का साथ भी लिखा था या सारी ज़िंदगी इसकी बेरुखी बर्दाश्त करते हुए गुजरेगी। इसकी आंखों में नमी झलकने लगी। अब वो हाथ धोकर खुद खाना पैक करने लगा और अपने लिए चाय का पानी चढ़ाया। लाई मैं कर देती हूँ, बहुत मिनमिनाकर आहिस्ता आवाज़ में कहा। ज़रनाश की आवाज़ कहीं दब गई थी। इसकी गुर्बत का असर था या इसकी शख्सियत का सहर ही ऐसा था। मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आप कर चुकी हैं वो काफ़ी है। तंज़िया लहजे में इसके जलने पर चोट कर रहा था। चलो वहाँ बैठ जाओ। डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। चाय पियोगी? कहते हुए आखिर में लहजा नरम हो गया। उफ़, क्या चीज़ है ये शख्स, हर रूप में गज़ब ढाता है। वो सोचों में महव डाइनिंग हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी, जहाँ से किचन का मंजर साफ नज़र आ रहा था। आरिश कोहनी तक आस्तीने मोड़े नफासत से काम में मसरूफ़ था और चौड़ी पुश्त को हैरत से तक रही थी। मुकम्मल वजाहत से भरपूर लड़का, जिसकी वजाहत पर हज़ारों लड़कियां फ़िदा थी। एक ऐसा एंकर जिससे बड़े-बड़े सियासतदान भी बात करते हुए घबराते, जिसकी ज़हानत पूरे मुल्क में मशहूर थी।
वैसे नफीसा कहाँ है? अब वो अपना और इसका चाय का कप टेबल पे रख रही थी। वो क्वार्टर में गई है, इसकी बेटी को बुखार था तो मैंने भेज दिया था। इसने घिघियाकर जवाब दिया। या अल्लाह, इस शख्स के सामने मेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? वो दिल ही दिल में बोल रही थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर पापा को भेजता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुलाज़िमा को बुलवा लेना। इसकी आवाज़ से वो होश की दुनिया में आई। जी, जी, ठीक है, हकलाते हुए जवाब दिया। एक बात तो बताओ। वो जाते हुए अचानक मुड़ा और इसकी आँखों में झाँक कर पूछने लगा, क्या मैं इतना खौफ़नाक हूँ? वो जो इसकी आवाज़ सुनकर ही घबरा गई थी, अब तो वाक़ई इसकी आवाज़ बंद हो गई थी। न नहीं, तो इसने हकलाकर जवाब दिया। आरिश ने मुस्कुराहट होठों पर दबाए ज़रनाश को देखा। हल्के नीले कलर का जदीद तराश खराज सूट पहने और सर पर हम रंग दुपट्टा ओढ़े गंदुमी रंगत खौफ और शर्म से सुर्ख हो रही थी। गुलाबी लब दांतों में दबाए वो वाकई किसी भी हसीन लड़की से कम नहीं लग रही थी। आरिश के दिल ने इस बात की गवाही दी। इसे खुद अपने एहसासात पर हैरत हुई। वो मुसलसल इसको देख रहा था। मोबाइल की रिंग टून बजते ही वो होश की दुनिया में वापस आया। जल्दी से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो वहाँ से निकल चुका था। उफ़! आनिया की जान में जान आई। कैसे देख रहे थे? क्या हो गया था आज? वो यही यही सोचते हुए अपने रूम में आ गई। हेलो, मोबाइल कान से लगाए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। आरिश, कहाँ रहते हो तुम? जब से तुम्हारा निकाह हुआ है इस सो कॉल्ड कज़न से, तुम तो बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो। दूसरी तरफ आनिया तंज़िया लहजे में इससे मुखातिब थी। ओह शट अप आनिया, अगर तुमने यही कहने के लिए कॉल की है तो मैं कट कर रहा हूँ। बेरुखी से कहता वो गाड़ी में बैठ चुका था। नहीं, फ़ोन मत काटना प्लीज़, मैं तो मज़ाक कर रही थी। सीरियस मत हो। वो इसे ठंडा करने की कोशिश करने लगी। मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारी फ़िज़ूल बातों का वक्त बिल्कुल नहीं है। ये कहकर इसने कॉल काट दी कि दोबारा कॉल आई। तुम्हें बात समझ नहीं आती? आरिश, मुझे भी अस्पताल जाना था, इसीलिए मैं कॉल कर रही थी क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है। मुझे भी पिक कर लेते। आनिया ने फ़ौरन झूठ कहा, जबकि सच तो ये है कि वो नाइमा का भूल ही गई थी। वो एक खुदगर्ज़ लड़की थी, इसे अपने अलावा किसी की फ़िक्र नहीं थी। सॉरी आनिया, मैं इस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और तुम्हें यह ख्याल जल्दी नहीं आ गया? वो तंज़िया लहजे में कहते ही कॉल कट कर चुका था। आनिया नाइमा हॉस्पिटल से आ चुकी थी तो आनिया मिलने आई। हेलो आंटी। दूर से ही वो इनसे मिलकर काफ़ी फासले पर बैठ चुकी थी। सॉरी आंटी, आपको तो पता है मुझे हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बस इसीलिए मिलने नहीं आ सकी। अच्छा चलती हूँ, गेट वेल सून। मसनूई मुस्कुराहट उछालती वो जा चुकी थी। इस दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। नाइमा को वाकई अफसोस हुआ। इस हादसे ने उन्हें बहुत हसास बना दिया था। मौत को करीब से देखा था। अगर कुछ हो जाता तो इस सोच से ही इनके अंदर फरहरी दौड़ गई। ये सच था, वो अपनी अकलौती बहन और भांजी से बेहद मोहब्बत कर रही थी क्योंकि इनके पास मैके का यही रिश्ता बचा था। वो अस्पताल में इन दोनों की मुंतज़िर रहीं। इन्हें हकीकतन अफ़सोस हुआ था कि इनकी जान से प्यारी बहन और भांजी ने इनको इस मुसीबत में कितना अकेला छोड़ दिया था। मुमानी आपका सूप। वो सोच से बाहर आई तो सामने जरनाश सूप का प्याला लिए खड़ी थी। सी ग्रीन कलर का सूट पहने और हम रंग का दुपट्टा सर पर टिकाए, चेहरे पर अजली मासूमियत और बड़ी बड़ी आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी देखकर बेसाख्ता वो जरनाश का आनिया से मुवाजना करने लगी। आनिया की रंगत बेशक शफाफ थी और ऊपर से इसमें सलीके से किया हुआ मेकअप इसको हसीन तो बनाता था, मगर जरनाश की मासूमियत इसे जाजिब नज़र बना रही थी। वो उठने लगी तो जरनाश जल्दी से सूप रखकर इनको उठाने में मदद करने लगी, फिर चम्मच से खुद पिलाने लगी। बेटा बस, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, नाइमा ने कहा। आंटी बस थोड़ा सा पी लें, फिर दवाई भी लेनी है। नाइमा को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अब तक आनिया के साथ कोई अच्छा सलूक जरनाश के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। इनके रवैये की वजह से इस एक अजनबियत की दीवार थी जो इन दोनों के दरमियान हाइल थी और आज वक्त ने इनको जरनाश का ही मोहताज कर दिया था। 2 महीने तक डॉक्टर ने आराम का कहा था। इनके तमाम काम जरनाश ही करती और नाइमा को अपने पिछले सलूक पर शर्मिंदगी हो रही थी। इनकी सगी भांजी ही किस तरह इनसे मिल रही थी, ये काम तो दूर की बात है। पता नहीं जरनाश ना होती तो मेरा क्या होता, किसी मुलाजमा के रहमो करम पर ही जी रही होती। बेटा जाओ, तुम भी आराम करो, सुबह से लगी हुई हो। मोहब्बत भरे लहजे में उन्होंने इसको मुखातिब किया तो जरनाश हैरत ज़दा इनकी शक्ल देख रही थी तो नाइमा को शर्मिंदगी हुई। हैरत से क्या देख रही हो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अजनबी सा रवैया रखा, जबकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के काबिल हो। वो प्यार से इसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली। जरनाश आज हकीकतन बहुत खुश हुई। इसने तो सारे काम अपना फ़र्ज समझ के किए थे, मगर इसके बदले इसे इतना बड़ा इनाम मिला था। अम्मी के जाने के बाद वो वाकई मोहब्बत के लिए तरस गई थी। आज नाइमा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर बेसाख्ता तशक्कुर के आंसू निकल गए। आनिया, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी बेजा जिद से। आरिश का निकाह हो चुका है, अब क्यों ख्वार करती हो खुद इसके लिए? वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। आनिया बेटा समझ जाओ। अब आनिया की माँ समरीन इसको समझा रही थी जो इस वक्त सोफे पे बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। आनिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब के वो गुस्से से बोली। क्या है मम्मा, आपको पता है कि मैं नहीं समझूंगी, फिर क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं? वो बेजारियत से बोलते हुए दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो चुकी थी। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी और का हो चुका है? अब की बार समरीन का लहजा आजिज़ाना हो गया था। मामा वो किसी का नहीं हुआ है। आरिश हसनान आनिया का था, आनिया का ही रहेगा। इसके डैड ने ज़बरदस्ती इसका निकाह किया है और दोनों के दरमियान मोहब्बत तो दूर की बात, कज़न्स
वाली दोस्ती भी नहीं, और मैं अपनी ख्वाहिश से इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं हो सकती मम्मा। अब के वो झुंझला कर बोली। आनिया बस, मेरे लाड ने भी तुम्हें इतना खुदसर बना दिया है, मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी। मिसेस नदीम ने अपने बेटे जोहाब के लिए तुम्हारी बात की है, मैं इनको कल डिनर पर बुला रही हूँ, तुम तैयार रहना। आनिया हैरत और दुख से माँ को देख रही थी। कितने आराम से कहकर चली गई तैयार रहना। मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ आरिश को सोचा है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, आनिया गुस्से से सोच रही थी। नाइमा की तबीयत अब बेहतरी की जानिब जा रही थी और जरनाज से इनकी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो दोनों हर वक्त साथ नज़र आती। इनको रोज़ फिजियोथेरेपी करवाना, लॉन में वॉक करना करना हो जरनाज ही करवाती। हसन साहब बहुत खुश थे। आज भी वो इनको व्हील चेयर में लॉन में लेकर आई और साथ साथ अपने बचपन का कोई किस्सा सुना रही थी। वो बहुत खुद में रहने वाली थी और थोड़ी मगरूर भी। शायद आरिश इन पर ही गया था, मगर इस हादसे के बाद इनमें मस्बत तब्दीली आई। हसन और आरिश जॉगिंग से वापस आए तो इनको इस तरह हंसते हुए देखकर खुशगवार हैरत का शिकार हुए। आज इतवार का दिन था, इसीलिए आरिश और हसन घर पर थे। आरिश ने भी कभी अपनी माँ को इस तरह हंसता हुआ नहीं देखा था। वाह बेगम, हमारे साथ तो कभी आप इतना नहीं हंसी, और बहू की बातों में बड़ी हंसी आ रही है। हसन साहब शौक से कहते हुए लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे, जबकि आरिश के सामने बहू कहने पर जरनाश ब्लश कर गई थी, जिसको आरिश ने दिलचस्पी से देखा। आप भी क्या बच्चों के सामने शुरू हो गए। नाइमा हसन की बातों पर झीप गई। इतने साल गुजर जाने के बावजूद दोनों में मोहब्बत अव्वल दिन जैसी थी। वाह मम्मा, आप शर्माती अच्छा हैं। आरिश हसन की बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वजिया चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार थे। एक आंख को दबाकर नाइमा से शोख लहजे में कहा। जरनाश इन लोगों की बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी। लो तुम भी शुरू हो गए अपने बाप के साथ। दोनों बाप बेटे एक साथ हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़कर। अब मेरी भी पार्टनर आ गई है, मैं अकेली नहीं हूँ। नाइमा ने जरनाश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। हसन साहब ने इस बात पर कहका लगाया, जबकि आरिश होठ को गुलाई में सुकीड़े आंखों में शरारत भरकर इसको देख रहा था। वो इतनी डरपोक सी पार्टनर, ओह इतनी डरपोक सी पार्टनर जो आवाज़ से भी डर जाती है। मम्मा बहुत वीक है आपका पार्टनर, आप हार जाएंगी। क्यों डैड? आरिश के इस तरह कहने पर नाइमा और हसान को खुशगवार हैरत हुई, जबकि जरनाज सबके सामने खुद को मौजू गुफ्तगू बनते हुए झीप गई। या अल्लाह, कैसा मीसना है, सब याद रखता है। टॉम क्रूज का भाई ना हो तो जैसे कैसे इस दिन की बात का ताना दे रहा है। मीसना घुन्ना नमूना। वो दांत पीसते हुए गुस्से से दिल में इसको बहुत से अलकाबात से नवाज चुकी थी। चलो मेरी बेटी को तंग ना करो, बहुत बहादुर है मेरी बेटी। नाइमा प्यार से इसको देखती हुई कह रही थी। बिल्कुल, हमारी बेटी बहुत बहादुर है और नाश्ता भी बहुत मज़े का बनाती है। बेटा कुछ खाने का भी इंतजाम कर दो, वरना ये माँ बेटे तो बातों से ही पेट भर लेंगे। हसान बहुत आजिज़ी सी शक्ल बनाते जरनाश से कह रहे थे। बेसाख्ता जरनाश को हंसी आ गई। जी मामू, अभी बनाती हूँ, हंसते हुए कहकर वो किचन की जानिब मुड़ गई। आरिश ने इसकी हंसी को फुर्सत से मुलायजा किया। अभी भी वो इसकी पुश को तक रहा था, जहाँ कमर तक आती लंबी सी चोटी नजर आ रही थी और लाल आंचल फिर किचन की जानिब गायब हो गया। चली गई है बेटा वो, वापस आ जाओ या साथ किचन में चले जाओ। हसान अपने बेटे को शरारत से देखते हुए कह रहे थे, जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर खज्जल सा अपना हाथ कंधे पर खुजाता हुआ मुस्कुरा रहा था। वजिया चेहरे पर घड़ा गहरा था। नाइमा और हसान दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर आरिश की तरफ इशारा करके देख रहे थे। तो बरखुरदार, क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? आरिश अब भी तिरछा सा मुस्कुरा कर इनसे पूछ रहा था। इसी बारे में जिसको आप बड़ी बेशर्मी से माँ बाप के सामने देखने में मगन थे। हा हा हा, आरिश का कहका बेसाख्ता था। ओ डैड, आप भूल चुके हैं, इजाज़तनामा है मेरे पास देखने का, और इस इजाज़तनामे पर आपने ही दस्तखत करवाए थे। आरिश कहाँ चुप रहने वाला था। दोनों बाप बेटे मजाक छोड़ो और वाकई अब सीरियसली बात करो। जरनाश का एमए भी मुकम्मल हो जाएगा इस साल। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी खुशी देखूँ। नाइमा ने कहा। बिल्कुल बेगम साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। आरिश, अब भी तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जो भी फैसला करो सोच समझ के करना और दिल से करना। मैं तुम दोनों के साथ कोई ज्यादती करना नहीं चाहता। तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सही से सोच लो। हसान साहब संजीदगी से अपने इकलौते बेटे को समझा रहे थे। हकीकतन अब वो चाहते थे आरिश दिल से फैसला करे। आ जाएं सब, नाश्ता लग गया है। जरनाश की आवाज़ आते ही सब डाइनिंग हॉल में आ गए, जहाँ मज़ेदार से नाश्ते के लवाजमात सजे हुए थे। वाह मेरी बेटी, दिल खुश कर दिया। आज पराठा, ऑमलेट, पूरी और चने का सालन और हलवे की खुशबू पूरे हाल में चकरा रही थी। ओह नो, इतना हैवी नाश्ता, मुझे सिर्फ ऑरेंज जूस दे दो। बरखुरदार, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, बच्ची ने इतने प्यार और मेहनत से बनाए हैं, चख तो लो। हसान साहब ने कहा। हाँ आरिश, वाकई बहुत टेस्टी है। नाइमा भी शौक से खा रही थी, जबकि वो बहुत डाइट कॉन्शियस थी। अरे मम्मा, आप भी खा रही हैं? आरिश को हैरत हुई। मामू ने खास फरमाइश की थी इसलिए बना लिया, मैं टोस्ट बना कर ले आती हूँ। आरिश जरनाश को अफसोस हुआ, इतनी मेहनत से बनाए हुए नाश्ते को आरिश ने यूँ छोड़ते हुए बिना इसको मुखातिब किए कह कर वो उठने लगी कि आरिश ने फ़ौरन पराठा उठा लिया। वह बहुत क्रिस्पी है। न जाने क्या हुआ था कि जरनाश को यूँ अफसरदा देखकर इसे अच्छा नहीं लगा, और ये हकीकत थी कि नाश्ता वाकई मज़ेदार था, कि अच्छा खासा डट कर खा लिया और ख़ुद भी हैरत ज़दा था। ये देखो अभी क्या कह रहे थे मोहतरम, हैवी डाइट, और हमसे ज़्यादा यही मोहतरम खा चुके हैं। हसान साहब के कहने पर आरिश खज्जल सा होकर मुस्कुरा दिया। बहुत खुशगवार माहौल में आज का पूरा दिन यूँ ही नोक झोंक में गुजर गया। आरिश आजकल अपनी
टीम की मदद से एक मंशियात फ़रोख्त के खिलाफ काम कर रहा था। इसे इत्तला मिली थी कि ये काम किसी बड़े सियासतदान की निगरानी में हो रहा है। वो इसी काम के सिलसिले में बहुत सी मालूमात जमा कर रहा था और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहा था। जैसे कि अभी वो एक प्रोग्राम लाइव कर रहा था जिसमें इसी सियासतदान का चेला मौजूद था और इसने इस अंदाज से बात की कि इसे शक भी ना हो। आप क्या समझते हैं इन सब मामलात का ज़िम्मेदार कौन है? अपने मखसूस भारी लहजे में कहते हुए वो मुखातिब था, जिससे सीट पर बैठा शख्स जिज़्बिज़ होकर रह गया। देखिए, ये तो हुकूमत का काम है कि ऐसे मंशियात फ़रोश को रोके, इनके खिलाफ इक़दामात करे, जबकि हुकूमत को महंगाई से फुर्सत नहीं। वो मौसूफ अपना दामन बचाकर हुकूमत के बखिया उधेड़ने लगे ताकि आवाम की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल हो जाए। देखिए, आप बात को दूसरे रुख में लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं होता। हर इंसान इस मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मेदार है। कुछ बाअसर अफराद खुद इसमें शामिल होते हैं। आरिश गुस्से से अब बोल रहा था। वो शख्स अच्छा खासा सटपटा गया था। उफ़! ये शख्स खुद को हीरो क्यों समझता है? पता भी इतने बाअसर लोग हैं, फिर भी इनके पीछे पड़ गया है। ज़रनाश ये प्रोग्राम लाइव देख रही थी। कल ही ये केस आरिश हसन साहब को बता रहा था। वो भी मौजूद थी। क्या देख रही हो? आरिश का शो? जी, वो चैनल चेंज कर रही थी जो बस वो खज्जल सी हो गई। नाइमा भी वहीं बैठ गईं। अब वो काफ़ी चलने लगी थी। आरिश को तो शुरू से इस तरह के लोग सख्त नापसंद हैं। इसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। कहता है मैं ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। लेकिन मामी, इस तरह तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनकी तो दुश्मनी भी खतरनाक होती है। इनकी इसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। प्रोग्राम तो कब का ख़त्म हो चुका था। वो जो घर आ चुका था इसकी आवाज़ सुनकर लाउंज में ही रुक गया। ओह! तो मोहतरमा को मेरी फ़िक्र है। तो क्या हुआ? मुझे 1-2 गोली लगेगी और मैं शहीद कहलाऊँगा। इसकी आवाज़ में शरारत का अंसर शामिल था। अल्लाह ना करे, क्या फ़ज़ूल बोल रहे हो लड़के। वो दोनों जो इसकी आवाज़ सुनकर चौंकी थी, इसकी बात सुनकर दहल गई थी। दोनों ने एक साथ कहा था। ज़रनाश भी घबरा गई थी। हा, हा, हा! बेसाख्ता कहका लगाया था। हा, हा, हा! बेसाख्ता कहका लगाया था आरिश ने ज़रनाश की शक्ल देखकर। नाइमा भी इसकी शरारत समझकर मुस्कुरा दी। वो अपनी हरकत पर ख़ाइफ़ सी होकर लाउंज से चली गई। बहुत बुरी बात है, बहुत तंग करते हो। इसको कहते हुए वो भी हँसते हुए बाहर चली गईं, जबकि आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जो बहुत थका हुआ और परेशान था, अब खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जाने इस रिश्ते में कशिश थी या ज़रनाश की दुआएँ कबूल हो रही थीं कि आरिश का दिल इसकी जानिब खिंचा जा रहा था। वो सोफ़े से टेक लगाए मुसलसल आँखें बंद किए इसी को सोच रहा था। आरिश रुको, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे? वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करके निकल रहा था कि आनिया की आवाज़ सुनकर मुड़ा तो वो खड़ी कह रही थी, क्या हुआ है? डू यू नो आनिया, ये मेरे शो का टाइम है, फ़ारिग नहीं रहता मैं हर वक्त कि कॉल रिसीव करूँ। बेज़ारी से कहते वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है ज़रूरी, आनिया ने जल्दी से कहा। ठीक है, कल लंच टाइम में मैं फ्री हूँ मैं। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया और वो वहीं खड़ी दूर जाती गाड़ी को देखती रह गई। आनिया फ़ारूकी इतनी बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर, आज तक जो चाहा वो हासिल भी किया। वो भी अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी, मगर ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आरिश हस्सान था। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था, वो था ही ऐसा, ये तो आनिया ही थी जो ज़बरदस्ती इसके पीछे-पीछे रहती। वो अगर एक दिन भी कॉल ना करे तो शायद वो भूल ही जाए कि कोई आनिया इसके लिए सिर्फ़ अपनी ज़ात अहम थी। इसके दिल में आनिया के लिए कभी मोहब्बत जागी ही नहीं। हाँ, वो इसको अच्छी दोस्त मानता है, मगर आनिया इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसे लगता वो एक दिन भी आरिश के बगैर नहीं रह सकती। अचानक इसे अपने हाथ में किसी गर्म चीज़ का एहसास हुआ तो देखा इसके आँसू इसके हाथ में गिर रहे थे। सामने आईने में अपना चेहरा देखा जो आँसू से तर था। तो आनिया फ़ारूकी, इसी की कसर बाकी थी। तुमने आज तक रोने वालों का मज़ाक उड़ाया था और आज खुद वाह! आनिया ने बेदर्दी से अपने आँसू पोंछे और तंज़िया मुस्कुराहट इसके होठों पर बिखर गई। अब इसे कल का इंतज़ार था। वो हकीकतन अब थकने लगी थी। एक तरफ़ा मोहब्बत का बोझ इसको अब अंदर से तोड़ रहा था। बाबा साईं, ये लड़का बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप हुक्म दें, इसका किस्सा आज ही दफ़ा एक ही दफ़ा ख़त्म कर दूँ। मीर शाह अपनी मूंछ को बल देते हुए दिलावर शाह से मुखातिब था, जो इस वक्त सोफ़े पर बैठे पुरसोच अंदाज में टीवी देख रहे थे। जहाँ आरिश इनके अहम कारकन से मुख्तलिफ सवाल पूछकर सच जानने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अभी नहीं, तुम जवानों का मसला यही है, हर फैसला जज्बात में आकर करते हो। दिलावर शाह ने मुस्कुराकर कहा। तो आप क्या करने वाले हैं? फिर मीर शाह थोड़ा बेचैन हुआ। ये तो पक्का है कि ये लड़का सब जान चुका है, ये या जान लेगा। जिस तरह दूसरे खामोश हैं, ये भी हो सकता है नया नया जोश है, इसीलिए उड़ रहा है। अभी हमसे मिलेगा तो जान जाएगा। मट्ठल मट्ठल, अब उन्होंने अपने खास मुलाजिम को आवाज़ दी जो 1 मिनट में हाजिर था। जी साईं, मुअद्दब सा हाथ बांधे खड़ा वो हुक्म का मुंतज़िर था। जबकि मीर शाह पुरसुकून था। वो जान चुका था दिलावर का अगला कदम क्या है। मिट्ठल, ज़रा इस एंकर को हमारे मेहमान खाने में आने का दावतनामा दे दो और सुनो, बहुत अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। किसी चीज़ की कमी ना हो। जी साईं, वो वैसे ही नज़र झुकाए वहाँ से जा चुका था। बाबा साईं, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से खामोश होगा। मीर अब भी कुछ उलझन का शिकार था, क्योंकि वो आरिश की तमाम मालूमात हासिल कर चुका था। क्यों नहीं होगा खामोश? ज़रूर होगा, वरना ये ज़मीन इस पर इतनी तंग हो जाएगी कि सांस भी ना ले सकेगा। अब की बार वो सफ़ाकाना लहजे और कड़क आवाज़ में बोले। तब मीर शाह ने सुकून का सांस लिया।
وہ گھر پر پہنچا ہی تھا کہ ایک کال آئی۔ وہ رک کر کال سننے لگا اور جب بات ختم کر کے فون رکھنے لگا تو چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تو دلاور شاہ آخر سیاد اپنے دام میں آ ہی گیا۔ ابھی تو اس کی معلومات ادھوری تھی، لیکن آج اس کال نے اس بات پر مہر لگا دی کہ یہ کام دلاور شاہ کے ہی نگرانی میں ہو رہا ہے، کیونکہ کل انہوں نے عارش کو رات کے کھانے پر دعوت دی تھی، اور سیاست دان کبھی کوئی کام اپنے مفاد کے بغیر نہیں کرتا۔ اس دعوت کا پس منظر عارش جانے سے پہلے ہی واقف ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر آیا۔ لانچ میں آیا تو زرناش بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زرناش کی نظر پڑی تو فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تھکا ہوا سا صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ مما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ عارش نے سوال پوچھا۔ مما ڈیڈ کے ساتھ ان کے کسی دوست کی عیادت کرنے گئی ہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک، عارش نے سر ہلایا۔ پلیز ایک کپ چائے بھجوا دینا، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک۔ وہ اس کے برابر سے گزر کر اوپر جا چکا تھا، مگر زرناش کے دل کے دھڑکن کی رفتار اب بھی تیز تھی۔ یا اللہ، اس شخص کے سامنے مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود کو ڈانٹتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وہ ٹراؤزر اور ہاف آستین کے شرٹ میں ملبوس وارڈروب میں گھسا ہوا تھا جب وہ چائے لے کر اندر آئی۔ چائے وہ رکھ کر جانے لگی۔ سنو کیا؟ اچانک بھاری آواز سے وہ مخاطب ہوا۔ جی۔ اس کی سانس خشک ہو گئی۔ منمنا کر پوچھا۔ نم سے بال اور چوڑی پشت یہ اب بھی چہرہ ہنوز الماری میں تھا۔ مضبوط بازو ہاف آستین کی وجہ سے نظر آ رہے تھے۔ اچانک زرناش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اف، اب بولے گا بھی یا یوں ہی مجھے پاگل کر دے گا؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ یہ نیلی شرٹ نہیں مل رہی، کہیں دیکھی ہے تم نے؟ آج کل سارے کام زرناش کے ہی ذمے تھے۔ نائمہ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب ذمہ داری زرناش نے ہی سنبھال لی تھی۔ اوہ، وہ میں نے پریس کر کے ڈریسنگ روم میں رکھی تھی، وہاں نہیں ہے تبھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولا۔ توبہ ہے، اتنی شرٹ ہے مگر محترم کو وہی پہننی ہے؟ وہ دل ہی دل میں غصے سے بولی۔ ایک تو اس کی قربت پریشان کر رہی تھی۔ ہٹے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ آواز چاہنے کے باوجود بھی تیز نہیں نکلی۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور اب وہ الماری میں منہ گھسا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا آفت ہے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ عارش اتنے قریب کھڑا تھا، گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے، دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خوشبو اس کے چاروں اطراف پھیل رہی تھی۔ مل گئی، وہ خوشی سے پرجوش لہجے میں بولتی ہوئی مڑی اور اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا گئی۔ اف، اپنے چکراتے سر کو وہ تکلیف سے سہلا رہی تھی، ایسا لگا کسی لوہے سے ٹکرا گئی۔ عارش اس کے دونوں بازو تھامے کھڑا تھا، اس کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ زیادہ لگی ہے؟ فکر مند سا اس کی پیشانی دیکھنے لگا۔ نہیں، کھکلا کر کہتی وہ جلدی سے جان چھڑاتی نیچے بھاگی۔ اف، نیچے آ کر 2 گلاس پانی چڑھا گئی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، دل تھا کہ لگ رہا تھا سینے سے باہر آ جائے گا۔ اتنی قربت، یہ شخص کیا چیز تھا؟ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے لگ رہا تھا۔ اب وہ خود پر قابو پا کر تکلیف سے دہائیاں دے رہی تھی۔ عارش اب اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر ذہن میں زرناش کی حرکت یاد آ رہی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ مما ڈیڈ سے صحیح بات کرتی، مگر اس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی۔ شرٹ ملنے پر کیسے بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ عارش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اب تک لڑکیوں کو خود کے قریب آتے ہی دیکھا تھا، مگر عارش نے ایک حد مقرر کی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہیں آ سکی، مگر یہ لڑکی اس کا تو ایک پاکیزہ رشتہ بھی تھا۔ مگر اتنا گھبراتی پتہ نہیں کیوں؟ مگر عارش حسان جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ زرناش جیسی لڑکی اس کے قابل نہیں، آج وہ اسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس سے کام نہیں ہو سکا تو وہ نیچے لان میں آ گیا۔ زرناش کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر بہت تیز ہوا تھی۔ وہ لان میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پڑی نیچے لان میں عارش مضطرب سا ٹہلتا ہوا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اف، یہ سگریٹ بھی پیتا ہے؟ اسے سگریٹ پینے والوں سے سخت چڑ تھی۔ اس کا دل خراب ہوا، غصے سے کھڑکی ہی بند کر دی۔ نیچے عارش مسلسل زرناش کو سوچ رہا تھا، کیا اس کو اپنی بیوی سے ہی محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ دل کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، ہم دونوں بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے، مجھے ایسی لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو پورے اعتماد لڑکیاں پسند تھیں۔ دل و دماغ میں عجیب سی جنگ جاری تھی۔ تمہاری سٹوری مجھے کسی فلم کی طرح لگتی ہے۔ واؤ، زرناش ایک روڈ سا کزن جس سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں اس سے محبت ہے مگر اسے نہیں ہے، اور پھر ایک دن تمہاری محبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ فائزہ پرجوش سی بول رہی تھی کہ زرناش نے ٹوکا۔ زیادہ فضول مت بولو فائزہ، زرناش کی بہترین دوست تھی، دونوں کلاس لینے کے بعد کینٹین میں بیٹھی تھی۔ فائزہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس کی ہی وجہ سے زرناش اتنی پر اعتماد ہو گئی تھی، مگر عارش کے سامنے نہ جانے کیا ہو جاتا، یہ سارا اعتماد ختم ہو جاتا تھا۔ لڑکی کیا سوچ رہی ہو؟ آج تم نے وعدہ کیا تھا مجھے ٹریٹ دوگی۔ زرناش کے دوسرے سیمسٹر کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، جس کی وجہ سے فائزہ اس سے ٹریٹ مانگ رہی تھی۔ ہاں چلو، مال چلو، شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کھا بھی لیں گے۔ زرناش نے منصوبہ بنایا۔
کچھ نہیں کھانا مجھے، اچھا خاصا کھانا ہے۔ فائزہ نے کچھ پر زور دے کر کہا۔ ہاں موٹی، اچھا خاصا کھا لینا۔ اب وہ ڈرائیور کو کال کر رہی تھی۔ ماموں سے تو اجازت لے لی تھی اور نائمہ بھی خوش ہوئی۔ اچھا ہے باہر جائے گی تو تھوڑا دل بہل جائے گا، کہیں جانا تو ہوتا نہیں تھا، گھر پر ہی رہتی۔ نائمہ بھی جب سے حادثہ ہوا تھا کہیں نہیں جاتی۔ ڈرائیور آ چکا تھا، وہ دونوں اب مال میں گھوم رہی تھی۔ یونی میں فیئرویل پارٹی تھی، دونوں کو کوئی لباس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف کیا ہے یار، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ تھک کر ایک بوتیک میں رک گئی تھی کہ اچانک زرناش کو عارش اور آنیہ نظر آئے۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ فائزہ نے بت بنی زرناش کو مخاطب کیا۔ زرناش نے کوئی جواب نہیں دیا تو فائزہ نے اس کے تعاقب میں دیکھا جہاں عارش اور آنیہ ایک گفٹ سینٹر میں کھڑے تھے۔ زرناش آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ زرناش نے اس کو ڈپٹا۔ پاگل میں نہیں تم ہو، تم بیوی ہو اس کی، وہ اس چڑیل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زرناش اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھی خاصی حسین لڑکی کو وہ اس کی محبت میں چڑیل کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کی نظر تھا کہ عارش کی اچانک نظر پڑی تو وہ فوراً ان کے پاس آ گیا۔ زرناش کی تو اس کو دیکھ کر حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہی نیلی شرٹ جینس کے ساتھ پہنے وہ نک سک سے تیار غضب ڈھا رہا تھا۔ خیریت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنے اپنائیت سے اس سے مخاطب تھا جیسے روز ان میں بات ہوتی ہو اور وہ اس کے معمول سے واقف ہو۔ وہ زرناش ہکلا ہی رہی تھی کہ فائزہ بول پڑی۔ ہم ڈریس لینے آئے تھے، یونی میں پارٹی ہے نا، لیکن زرناش کو تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، آپ ہماری مدد کروا دیں۔ فائزہ بیچارگی سے شکل بنائے عارش کی مدد مانگ رہی تھی، جبکہ زرناش مسلسل اس کو گھور رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر اپنی سینڈل بھی رکھ چکی تھی۔ فائزہ تکلیف سے کرا گئی، مگر یہ منظر عارش کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ جی شور لب اب بھی مسکرا رہے تھے اور ڈمپل گہرا ہو گیا۔ عارش تم یہاں کھڑے ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ آنیہ بھی ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی اور زرناش کو دیکھ کر ایک ناگواری کا احساس ہوا، جبکہ فائزہ نے بھی اس کو دیکھ کر اچھا خاصا منہ بنا لیا۔ البتہ زرناش یوں ہی کھڑی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی عارش کو زبردستی اس کو شاپنگ کروانی پڑے، جبکہ آنیہ کی پیشانی پر بل وہ دیکھ چکی تھی اور دل بجھ چکا تھا۔ آنیہ تم فوڈ کورٹ پر ویٹ کرو یا پھر اپنی شاپنگ مکمل کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، تمہیں کال کر دوں گا۔ آنیہ بیزاری سی شکل بنائے وہاں سے جا چکی تھی۔ آؤ، وہ ان دونوں کو لے کر ایک بوتیک میں گیا۔ شکر ہے اس چڑیل سے جان چھوٹی، فائزہ زرناش کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی۔ یہ چیک کروا دیتا ہوں، یہ پیک کروا دیتا ہوں۔ عارش کی آواز سے وہ دونوں چونکی۔ انگوری کلر کی گھٹنوں تک آتی سٹائلش سی فراق تھی وہ، جس پر مہرون کلر کا ہلکا کام تھا۔ واؤ کیا چوائس ہے آپ کی عارش بھائی، اف کتنی جلدی رشتہ بنا لیا، بالکل آنکھیں بدل لی، اس کو دیکھ کر مجھے پہچان ہی نہیں رہی۔ بیٹا تم چلو تمہیں بتاتی ہوں۔ زرناش آنکھوں سے ہی اس کو دھمکی دے رہی تھی۔ فائزہ جس کو بڑے مزے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ ہیوی ہو جائے گا، زرناش منمنائی۔ عارش اس کو نظر انداز کیے سوٹ پیک کروا چکا تھا۔ وہ عجیب آدمی ہے، اپنی مرضی چلا رہا ہے، جس کو پہننا ہے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فائز اور عارش آرام سے سوٹ پیک کروا کر آگے بڑھ چکے تھے اور پیچھے چلتی ہوئی دانت پیس رہی تھی۔ اس طوطا چشم لڑکی کو تو میں بتاتی ہوں، آئی بڑی بھائی کی بہن چمچی۔ فائزہ عارش سے اچھا خاصا گھل مل چکی تھی اور اس سے زرناش کا ہی کوئی قصہ سنا رہی تھی جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ زرناش کا غصے سے برا حال تھا۔ جاؤ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ، میں نہیں لے کر جاؤں گی تمہیں۔ عارش ان دونوں کو گاڑی کے پاس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زرناش فائزہ پر غصہ اتار رہی تھی۔ یار کتنی کیوٹ لگ رہی ہو تم غصے میں، کاش عارش بھائی تمہیں اس وقت دیکھ لیں، فدا ہو جائیں گے۔ فائزہ مزے سے کہتی اس کے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ دفع ہو تم۔ وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، قدر کرو لڑکی میری، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں تو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، عارش بھائی نہیں ہوتے تو ہم کچھ نہیں لے پاتے۔ تمہارے عارش بھائی نے صرف جان چھڑانے کے لیے جو نظر آیا وہ لے لیا تاکہ اس پلاسٹک کی چھپکلی کے پاس جا سکے۔ زرناش ہنوز خفاسی شکل بنائے بیٹھی تھی، جبکہ فائزہ نے کہکا لگایا۔ واہ کیا نام دیا ہے میڈم نے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے عارش بھائی کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے جو تمہیں دیکھ کر آئی، وہ چڑیل خود پیچھے پڑی ہوگی ان کے، وہ مجھے ایسے نہیں لگتے۔ فائزہ مسلسل عارش کی حمایت کر رہی تھی، اور وہ ڈریس وہ اتنا حسین تھا دیکھنا، مغلیہ شہزادی لگو گی پہن کر، اب وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ زرناش کو بھی اپنا موڈ صحیح کرنا پڑا، اور یہ سچ تھا وہ ڈریس واقعی حسین تھا اور بہت مہنگا بھی تھا۔ زرناش خود کبھی نہیں لیتی کیونکہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنا مہنگا ڈریس لے، پتہ نہیں سب کیا سوچیں گے، کچھ بھی ہو وہ اس گھر کی چیزوں کو اپنا حق نہیں سمجھتی تھی۔ عارش دیکھو میں بچپن سے صرف تمہیں چاہتی ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ دیکھا ہے، ماما میری کہیں اور شادی کروانا چاہتی ہیں مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، آنیہ بول رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی، کچھ بھی تھا عارش کی شخصیت سے وہ بھی خائف رہتی تھی، تب ہی آج تک اس سے اظہار نہیں کر سکی، ورنہ وہ آزاد خیال سی لڑکی تھی۔ جبکہ عارش پرسکون سا بیٹھا اسٹرا گھماتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ میں جانتی ہوں اس نکاح میں تمہاری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، تم بہت جلد اسے طلاق دے دو گے، بس وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، ایک لفظ نہیں، وہ بیوی ہے میری، آئندہ ایسی بات میں تم سے نہیں سنوں۔ آنیہ جیسی لڑکی بھی اس کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔
आगे पीछे लोग भी बैठे मुड़कर देखने लगे। देखो आनिया, अब की आवाज़ धीमी थी। मैंने माना कि ज़रनाश मेरी आइडियल नहीं थी, मगर ये भी सच है कि मैंने तुम्हें भी कभी इस लिहाज से नहीं देखा। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, जिस तरह बिलाल और सुहाब। जब मैंने देखा कि तुम कुछ और सोच रही हो, तब मैंने तुम्हें समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने खुद ही सब कुछ फ़र्ज़ कर लिया था, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सुहाब को जानता हूँ, अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद भी करता है। हम ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। ज़रूरी नहीं हम जो चीज़ की ख्वाहिश करें वो हमें हासिल भी हो। आरिश इसे नरम लहजे में समझा रहा था। हाँ सही कह रही हो, कुछ ख्वाहिशें हमारे दिल में हसरत बनकर रह जाती हैं। टूटे हुए लहजे में कहती वो वहाँ से चली गई। आरिश ने एक गहरी सांस भरी। आनिया जैसे ही गाड़ी में बैठी, इसका फ़ोन बजा। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ ज़ुहाब था। आनिया कैसी हो, हम कहीं मिल सकते हैं? ठीक है कल। आनिया ने कुछ सोचते हुए टाइमिंग और जगह बताई। दिल खून के आंसू रो रहा था। इतने सालों का गम था, यूं तो नहीं भरता। खुद तो खाली हाथ रह गई, मगर ज़ुहाब को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। ज़ुहाब काफ़ी सालों से इसके पीछे पड़ा था, और आनिया के झड़कने पर भी इसके मुस्तकिल मिजाजी में कोई कमी नहीं आई थी। वो घर आ चुकी थी, और आज इसे आरिश का गम मनाना था, अपनी अधूरी मोहब्बत का गम। ये गम तो कभी नहीं भरता, मगर वो समझ चुकी थी हर इंसान की किस्मत में जो लिखा जा चुका है वही मिलना है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले। आरिश जैसे ही दिलावर शाह की हवेली पहुंचा, मिट्ठल गेट पर ही इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। फिर इसको अपनी मैयत में बैठक में ले जाकर बिठा दिया और दिलावर को पैगाम देने के लिए चला गया। जब तक आरिश इस वसी और अरीज बैठक को तफसील से देख रहा था, कमरा वाकई किसी सियासतदान का ही पस मंज़र साबित कर रहा था। चारों एतराफ दीवार में बड़ी बड़ी सी दिलावर शाह की तस्वीरें लगी थी। किसी में वो शिकार कर करते हुए तो किसी में गांव के मजबूर लोगों को लिफाफे तकसीम करते हुए। आरिश के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। खुश आमदीद, खुश आमदीद। दिलावर शाह अंदर आए और पुरजोश तरीके से आरिश से मुसाफा किया। और बरखुरदार, बहुत ऊंचा उड़ रही हो। हा हा हा, बिल्कुल ऐसे ही पुरजोश जवानों की ज़रूरत है इस कौम को। आरिश तंजिया मुस्कुराहट सजाए इनकी बात सुन रहा था। वो काफ़ी देर इससे ज़ाती सवालात पूछ रहे थे, जिसका वो तहम्मुल से जवाब दे रहा था। फिर खाने का दौर चला, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद थे। आरिश खाने को सिर्फ बराए नाम का खाने के बाद दिलावर शाह ने कहा, अरे वो तोहफ़ा तो लाओ मिठाल, जो मेहमान को देने के लिए रखे हैं। कुछ देर में मीर शाह भी आ गया। दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। आरिश इसको ज़ाती तौर पर भी जानता था। मीर शाह की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। वो अपने बाप की शोहरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर हर नाजायज़ काम धड़ल्ले से करता था। मिठल एक बैग के साथ वापस आया। हम जानते हैं तुम आगे तक जाओगे, बहुत जोश है तुम में। तमाम काम करो, देखो मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, इस पर काम करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ सियासत में आ जाओ, हमें ऐसे भी तो तुम जैसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। बेहतर है शाह साहब अब काम की बात कर लें, जिसकी वजह से आपने अपना इतना कीमती वक्त बर्बाद करके मुझे बुलाया। मुझे ऐसी सियासत से माफ़ रखिए शाह साहब, जहाँ अवाम के खून से अपनी सियासत चमकाई जाए और सियासतदान का लिबादा ओढ़कर मुंशियात फरोश जैसा घिनौना धंधा किया जाए, और मुल्क की मईशत और अवाम को नुकसान पहुँचाकर खुद को मुल्क का वफादार साबित करे। आरिश अब बेजार हो गया था इनकी चापलूसी जैसी बातों से। इसने खुले अल्फाज में बात की ताकि दिलावर अब इससे किसी और तरीके से जाल फेंकने की कोशिश ना करे, बल्कि साफ बात करे। मीर शाह तो इसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। इससे पहले वो कुछ बोलता, दिलावर शाह ने अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखकर ठंडा करने की कोशिश की। बरखुरदार, लगता है बड़े जोश में हो, इतना ऊंचा ना उड़ो कि मुंह के बल गिरो। गिरता तो वो है शाह साहब जिसकी रस्सी खुदा ने दराज की हो, और अचानक जब वो रस्सी खींचता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हा हा हा, दिलावर शाह का कहका फिजा में गूंजा। मैं तो तुमसे मुतासिर हो चुका हूँ, चलो एक डील करते हैं। तुम ये मंशियात वाले केस पर तहकीकात करना छोड़ दो, और मैं तुम्हें इसके बदले दूसरी मालूमात दे सकता हूँ, जिससे न सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा बल्कि तुम्हारे प्रोग्राम की रेटिंग भी बढ़ेगी। वो मूँछों को बल देते हुए सामने बैठे आरिस से मुखातिब थे, जो सपाट सा चेहरा लिए बैठा था। जबकि मीर शाह बाहर जा चुका था। कुछ भी था, वो आरिश की शख्सियत से के रोब में आ गया था, और ऐसे भी अब इसके अय्याशी का टाइम हो गया था। वो दोस्तों की तरफ निकल गया। आरिश ने घड़ी देखी और कहा, साफ सी बात है शाह साहब, मैं जो काम ठान लूँ वो करके रहता हूँ। अब मैं ये काम किसी सूरत नहीं रोक सकता, और बुराई में जहाँ देखूंगा इसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अब वो सामने पड़े बैग की तरफ देख रहा था, जहाँ हरे और नीले नोट की घटी थी। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि हर किसी को पैसे से ख़रीदा जा सकता है तो ये आपकी भूल है। कुछ लोगों का ज़मीर अब भी ज़िंदा है, और मुल्क से मोहब्बत बाकी है, जो आप जैसे गद्दार लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब इजाज़त दें, मुझे अफसोस है कि आपका तमाम कार कर, कार, कारगर साबित नहीं हो सका। लंबे लंबे डाक भरते हुए वहां से जा चुका था, जबकि दिलावर शाह गुस्से से खड़े। आज तक किसी ने भी इनके काम के बीच में आने की कोशिश नहीं की, और जो आए इनका मुंह बंद करवाना दिलावर शाह को अच्छे तरीके से आता था। मगर ये लड़का इनकी तवक्को से ज़्यादा ईमानदार और ज़हीन था। वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लगता है इस लड़के के पर काटने पड़ेंगे मिठल जी साईं। वो मुअद्दब सा खड़ा था।
इस लड़के पर पूरी नज़र रखो और इसकी फैमिली पर भी, कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, रोज़ का मामूल चाहिए और हमारे हुक्म के मुंतज़िर रहो। सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। करता हूँ कुछ। जी साईं, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, गाड़ी निकालो ज़रा। जी साईं। वो बहुत कुछ सोचे बैठे थे। अभी इन्हें किसी दौरे पर जाना था। मित्तल की गाड़ी निकालते ही 2-3 मुसल्लह गार्ड की गाड़ी की मैयत में इनकी गाड़ी धूल उड़ाती जा चुकी थी। जो काम वो कर रहा था वो खतरे से खाली नहीं था। वो जानता था अब इनका अगला कदम ज़रूर खतरनाक होगा। अब वो खुद को हर तरीके के खतरे से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। इसने घर पर इस बात का किसी से ज़िक्र नहीं किया। इसे पता था नाइमा परेशान हो जाएगी। वो मुसलसल कमरे से मुल्हिक टेरेस में खड़ा सोच रहा था कि अचानक नीचे लॉन में नज़र पड़ी। नीले रंग का आंचल बार-बार नज़र आ रहा था और झलक दिखाकर गायब हो जाता था। ज़रनाश कोई किताब लिए शायद पढ़ रही थी। इसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम इम्तिहान होने वाले थे। अब वो नज़र कम आती थी। अक्सर कमरा बंद करके पढ़ रही होती या लॉन में टहलकर पढ़ती हुई नज़र आती। वो इस तरफ थी जहाँ से आरिश की बालकनी से बमुश्किल नज़र आता है। सिर्फ अचानक आरिश के दिल में इसको सामने से देखने की ख्वाहिश हुई। वो दिल की इस अनोखी फरमाइश पर हैरान था। ये सोच के ही मुस्कुराहट इसके संजीदा चेहरे पर फैल गई कि अभी वो अचानक इसे देखकर घबरा जाएगी। इस सोच ने इसे और बेचैन कर दिया। इसका दिल चाहा कि जाए और ज़रनाश का घबराया हुआ चेहरा देखे। वो अपने दिल पर काबू नहीं पा सका और लबों में मुस्कुराहट दबाए लॉन में पहुंच गया जहाँ वो अब भी टहल रही थी। मगर अब इसे इसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था। ज़रनाश की नज़र अब तक इस पर नहीं पड़ी थी। वो दूर खड़ा काफ़ी देर तक इसको देखता रहा और ख़ुद भी नहीं जानता था वो इस तरह की बचकाना हरकत क्यों कर रहा है। नज़रों का इर्तिकाज़ था कि ज़रनाश की नज़र सामने पड़ी। दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाले वो दिलचस्पी से इसे ही देख रहा था। आंखें शरारत से मुस्कुरा रही थीं। हाय अल्लाह, ये कब आए और मुझे ही देख रहे हैं। ज़रनाश ने ज़रा सी नज़र उठा के देखा, फिर झुका लिया। तौबा, इंसान की आँख है या रोबोट की ज़रा भी पलक नहीं झपक रही। अब वो इन नज़रों से ख़ाइफ़ सी हो गई थी। कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था। हाय, ये तो यहीं आ रहा है। जब से आरिश के देखने का अंदाज़ बदला था, ज़रनाश इससे दूर भागती थी और मैं क्यों घबरा रही हूँ। नहीं ज़रनाश, तुम बीवी हो, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। रिलैक्स ज़रनाश, रिलैक्स। वो आँखें बंद करके खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। ये आँखें बंद करके कौन-सी पढ़ाई हो रही है। उफ़! वो उछल ही तो गई थी आवाज़ पर, फिर फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया। वो संजीदा सी शक्ल बनाए इससे पूछ रहा था, लेकिन आँखें हनूज़ शरारत से चमक रही थी। मैं दुआ पढ़ रही थी। ओह! आरिश ने लबों पर आती मुस्कुराहट का गला घोंटा। वैसे तुम दोनों की दोस्ती है, लग रहा है काफ़ी देर से दोनों साथ टहल रही हो। वो अब भी मुस्कुराहट दबाए इससे मुखातिब था। कौन? सरनाश की आँखें फैल चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से अकेले ही थी। फिर कौन था जिसकी वो बात कर रहा था? वो आरिश ने दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ मोटी सी छिपकली इसे ही देख रही थी। खौफ से इसकी चीख निकल गई और वो इस जगह से दूर भाग गई। लॉन में लगी कुर्सी में बैठ कर वो अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। सोच सोच कर ही खौफ से झुरझुरी आ रही थी। छिपकली इसके साथ टहल रही थी। वो भी अब कुर्सी पर बैठ चुका था, लेकिन मुस्कुराहट अब भी चेहरे का अहाता किए हुई थी। ज़रनाश अब इसे शक की नज़र से देख रही थी। ओह तो मोहतरम, मुझे नहीं छिपकली को देख रहे थे। आपको पता था वहाँ छिपकली है? बताया क्यों नहीं मुझे, और इंतज़ार में थे कि कब छिपकली मेरे सर पर गिरे और मुझे अपना लुक़मा अजल बना ले। इसके कहते ही हारिश का कहका फ़िज़ा में गूंजा, जबकि ज़रनाश ने भी ज़ुबान दाँतों में दबा ली। ये मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ कि छिपकली इंसानों को लुक़मा अजल बनाती है। मुझे तो यही लगा था कि ये सिर्फ़ लड़कियों को डराने के काम आती है। आरिश का कहका रुका नहीं। गर्दन पीछे किए वो मुसलसल हँस रहा था। माथे के बाल कुछ और बिखर गए थे। ज़्यादा हँसने की वजह से आँखों में आँसू आ गए और वो बैठी इस वक्त को कोस रही थी जब इसके मुँह से निकला, पता नहीं मेरी बोलती बंद हो जाती है या फिर उल्टा सीधा ही निकलता है ज़ुबान से इनके सामने। अब ये मेरा मज़ाक उड़ाते रहेंगे। मैं मज़ाक नहीं उड़ाऊँगा, ना ही किसी को बताऊँगा। संजीदा सा चेहरा बनाए वो इसे कह रहा था, मगर आँखें हनूज़ शरारत से मुस्कुरा रही थी। उफ़! ये दिल की बात कैसे पढ़ देते हैं। सरनाश दिल ही दिल में लाई। तुम्हें किसी ने बताया या नहीं कि तुम बुलंद आवाज़ में सोचती हो? अब वो मुस्कुराहट दबाए खड़ा हो गया और वो खज्जल सी हो गई। वाक़ई इसकी बहुत बुरी आदत थी, दिल ही दिल में बातें करती आवाज़ बुलंद हो जाती थी। अच्छा, अब जाके सो जाओ, ऐसा ना हो वाक़ई छिपकली उड़ते हुए आए और तुम्हें लुक़मा अजल बना ले। पहले वो वाक़ई डर कर जाने लगी, मगर अचानक बात पर गौर किया तो इसे मुड़कर देखा, जिसे फिर हँसी का दौरा पड़ चुका था। अब की बार वो भी मुस्कुरा दिया। आरिश का ये रूप वो पहली बार देख रही थी, वरना इतना हँसते हुए इसने इसे कभी नहीं देखा था। वो दोनों ही एक-दूसरे को देख रहे थे और मोहब्बत के इस रंग से रोशनास हो रहे थे, जिससे वो दोनों ही नावाकिफ़ थे। ज़रनाशी होश में आई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि आरिश के कहके ने इसका ताक़ुब किया था। आरिश भी कमरे में आ गया था और अब पहले वाली परेशानी चेहरे से गायब थी, बल्कि एक शौक़ सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया हुआ था। वो सारी दिन भर की कसावट भूल
चुकी थी। वो अब खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। वाह आरिश, मान लो कि तुम्हें अपनी ही बीवी से मोहब्बत हो चुकी है। वो सोने के लिए लेट चुका था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगर वो जाग रहा था तो जरनाश को कौन सा नींद आई थी? आरिश की आंखें वो बार बार इन आंखों को याद कर रही थी, जहाँ आज पहली बार इसे अपने लिए मोहब्बत नजर आई। तो आरिश हसन, मेरी दुआओं ने आपको जीत लिया। मेरी मोहब्बत सरखुरू हुई। एक फातिहा बना सरशार था तो दूसरा अपनी हार तस्लीम किए खुश था। आनिया की मंगनी का इनविटेशन कार्ड आया था। जरनाश को हैरत भरी खुशी हुई। नाइमा बेगम भी खुश थीं। कुछ भी था, भांजी से इनको अब भी मोहब्बत थी। इसका दुख इन्हें था, एक गिल्ट का शिकार थीं, जिससे आज वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आनिया खुद आई थी। आनिया नाइमा से भी अच्छे से मिली और माफ़ी भी मांगी। आंटी, मुझे माफ़ कर दें, शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, अब पुरानी बातें दोहराकर अपनी खुशी मत खराब करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आनिया के लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट आकर गुजर गई। आंटी, जरनाश कहाँ है? आज वो पहली बार खलूस से जरनाश का पूछ रही थी। किचन में है बेटा, जाओ जाके मिल लो। अब वो जरनाश के पास खड़ी थी। जरनाश को बहुत हैरत हुई। इसे इस तरह वो झिझक रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। पहले वाली मगरूरियत चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। आनिया, आपकी मंगनी का सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुबारक हो। जरनाश ने ही बात का आगाज़ किया। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जरनाश। वो अचानक इसका हाथ थाम कर कहने लगी। जरनाश हैरान परेशान इसको देख रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और तुम मुझसे इतनी खुशदिली से मुबारकबाद दे रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो आरिश से तुम्हारी खैर छोड़ो, ये बताओ मंगनी में तो आओगी ना? आखिर में इसकी आवाज़ भीगी सी हो गई। अरे ये भी कोई कहने की बात है, ज़रूर आऊँगी। और आपको अब कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बताएं, चाय पिएँगी या कॉफ़ी? जो तुम चाहो, आनिया ने कहा और दोनों कहका लगाने लगी। आनिया ने आरिश की आँखों में जरनाश की मोहब्बत देखी थी। वो अब जरनाश को नापसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो इसकी मोहब्बत की मोहब्बत थी। दोनों की आँखों में नमी चमक रही थी। आज आनिया ने काफ़ी देर जरनाश के साथ बातों में गुज़ारा। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। आज आरिश न्यूज़ रूम में पहुंचा तो इस चैनल के सीईओ ने इसे अपने पास बुलाया। आरिश, तुम जानते हो ये काम खतरे से खाली नहीं है। तुम जानते हो दिलावर शाह के ताल्लुकात कितने ज़्यादा हैं। वो इतनी आसानी से नहीं हार मानेगा। बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं इसके। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बुराई एक वक्त तक हावी रहती है। एक ना एक दिन अच्छाई इस बुराई को ख़त्म कर देती है। मुझे इस दिन का इंतज़ार है। आरिश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। बस मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा एहतियात करो। कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। जी, जी, बिल्कुल, आपकी वजह से तो मैं साबित कदम हूँ। अब वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था। आरिश अपना काम ख़त्म करके सीधा हुआ था कि एक कॉल आई। हेलो, कौन? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की? शट अप, अपनी नापाक ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम मत लो। हा हा हा, रोमियो को तो नाम लेने से ही बड़ी तकलीफ़ हो रही है, फिर इसे तकलीफ़ में देखकर कितनी तकलीफ़ होगी। मीर शाह कहका लगा रहा था, जबकि आरिश का बस नहीं चल रहा था वो जाकर इस शख्स का गला दबा दे। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो बेहतर है मुझ तक रहो। मेरी फैमिली में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? वो धाड़ा था। दिमाग की रगें तन गई थी। अगर मीरशा सामने होता तो शायद वो जिंदा नहीं रहता। नहीं नहीं एंकर, तुम्हारी फैमिली नहीं, सिर्फ तुम्हारी बीवी। मैं तुम्हें वहां से नुकसान पहुंचाऊंगा जहां तुम तकलीफ से बिलबिला जाओगे। मीरशाह फ़ोन में शेर बना बैठा था, जबकि मीरशाह ने तो अंधेरे में तीर चलाया था, मगर तीर सही निशाने पर लगा था, बल्कि इसकी तवक्को से ज़्यादा आरिश जरनाश का नाम सुनकर तैश में आ गया था। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम ये समझ रहे हो तुम्हारी इस घटिया चाल से मैं डर जाऊँगा तो ये सोच है तुम्हारी। जिस काम के लिए तुम रोक रहे हो ठीक से नहीं करता मैं, सही, मगर जो चीज़ मेरे पास है वो तुम्हारी मंगेतर और तुम्हारे बाप और तुम्हारे ख़ानदान वालों को दिखाने के लिए काफ़ी है, और तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मीर दिलावर शाह, मैं चुप हूँ सिर्फ़ इसीलिए। तुम्हारे किसी भी ज़ाती फ़ेल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी या मेरे घर वालों में से किसी को भी नज़र उठा के भी देखा, तो तुम याद रखोगे कि तुमने आरिश हसन के घर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। धीमे धीमे लहजे में औराक कर कहता वो वाकई मीर शाह की बोलती बंद करवा चुका था। मीर शाह की वाकई हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मीर शाह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और इसके बहुत से कारनामे आरिश को पता थे। मीर शाह परेशान हो गया था। इसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। आरिश दोनों हाथ सर पर रखे बैठा था। चेहरे पर संजीदा से आसार थे। ब्राउन आंखें गम और गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। सोच-सोच के दिमाग माऊफ हो रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि दिलावर शाह इस हद तक गिर जाएगा कि अपने बेटे को आगे कर देगा और जरनाश तक पहुँच जाएगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर इसका मुँह तोड़ दे।
زرناش کا نام اس کے منہ سے سن کر آگ ببولا ہو چکا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا آج زرناش کی فیئرویل پارٹی تھی۔ فوراً گھڑی دیکھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی طرف سے تو میر شاہ کو اچھی خاصی دھمکی دیتی تھی جس سے میر واقعی پریشان ہو گیا تھا، مگر عارش کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے ڈرانے کے لیے اسے کہا تھا مگر میر شاہ واقعی بلبلا گیا تھا کیونکہ صرف دولت اور شہرت کی وجہ سے وہ اتنا اڑتا تھا، مگر اندر سے وہ ایک بزدل مرد تھا۔ عارش جانتا تھا کہ وہ صرف کہہ رہا تھا، کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے، مگر وہ اب ہر طرح سے سوچ رہا تھا۔ وہ پھر بھی احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ معاملے کی سنگینی کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ اب کسی کو کال ملا رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا اب وہ کال پر مصروف تھا۔ ہیلو، ہاں عثمان یار، کل مجھ سے ملو۔ ہاں وہی کیس ڈسکس کرنا ہے۔ ہاں اب دھمکی پر اتر آئے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں اس کھیل کو اب ختم کر دوں۔ اب میں جلد از جلد اس کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کال رکھ چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ براؤن آنکھیں سنجیدہ سی سامنے مرر پر جمائے لب بھیجے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ بس وہ نکلی نہ ہو، ایک ہی دعا اس کی زبان پر تھی۔ ہاں فائدہ، ہاں میں بس نکل رہی ہوں۔ وہی اس دن والی فراق پہنے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اب وہ آئینے میں خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک دل نے خواہش کی کاش عارش اسے اس تیاری میں دیکھ لے۔ دل کی اس خواہش پر لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ ابھی تو بہت ٹائم تھا عارش کے آنے میں، مگر اسے جلدی نکلنا تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ نائمہ نے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، پیار سے اس نے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی تعریف پر وہ جھینپ گئی۔ ڈرائیور کو کہہ دیا تھا نا، جاؤ۔ جی آنٹی۔ وہ باہر نکل گئی۔ عارش واش میں پہنچا تو دیکھا وہ تیار تھی اور جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو وہ دیکھتا رہ گیا، یہ وہی زرناش تھی یا کوئی معصوم پری؟ وہ نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پا کر وہ آگے بڑھا۔ دل انجانے خوف سے لرز سا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سختی سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، جاؤ اندر۔ مگر ماموں سے کہا تھا میں نے۔ وہ حیران اور پریشان تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کل تک تو ٹھیک تھا، اب یہ؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا جاؤ اندر۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ زرناش سہم گئی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ دور کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جس لڑکی کو اس نے ڈانٹا تھا وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ اس کی ہر سانس میں اب صرف وہی بستی ہے۔ اس کی تکلیف کا سوچ کے ہی اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اسی لیے اسے سختی دکھانی پڑی، صرف اسی لیے کہ وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ لیکن زرناش کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ کس طرح بے یقینی سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ خود کتنی حسین لگ رہی تھی، ڈری سہمی نازک سی۔ دل چاہا اسے اپنے سینے میں چھپا لے اور دنیا کے ظالم نظروں سے بہت دور لے جائے۔ وہ تھکا ہوا سا لاؤنج میں داخل ہوا جہاں نائمہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ عارش کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا ہے زرناش کو؟ اچھا خاصا تیار تھی جانے کے لیے، ابھی روتی ہوئی کمرے میں گئی ہے۔ جی میں نے منع کر دیا ہے، سنجیدہ سے لہجے میں کہتا اپنا کوٹ اتارنے لگا، مگر لفظوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ تم نے؟ مگر کیوں؟ نائمہ اچنبھے کا شکار ہوئی۔ ماما پلیز ابھی کوئی کوشچن نہیں، میں آپ کو سب بتا دوں گا، مگر پلیز ابھی نہیں۔ کیا ہوا عارش؟ تم پریشان ہو؟ اب وہ فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسی پارٹی میں جائے۔ وہ بولتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نائمہ حیران پریشان تھی کہ عارش اتنا انسیکیور کب سے ہو گیا۔ عارش اب اپنی بالکنی کے پاس کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کال کے بعد ایک دن میں ہی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، جیسے کچھ کھونے کا ڈر تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر گیا تھا، وہ جانتا تھا میر شاہ اب کچھ نہیں کر سکتا، مگر دلاور شاہ کے دماغ میں اگر یہ بات آ گئی ہے تو پھر وہ کسی بھی ذریعے سے اس کے کام کو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور زرناش کا سوچ کر ہی اسے لگتا کوئی اس کی روح کو کھینچ رہا ہو۔ اسے آج احساس ہوا کہ دو بولوں کا رشتہ اتنا بھی کمزور نہیں ہوتا۔ نکاح بہت طاقتور رشتہ ہے، جس رشتے کو خدا نے بنایا ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ دو لوگوں کے بندھن کا نام ہے، ایک کو تکلیف ہو دوسرا تڑپ جائے۔ جہاں محبت کرنی نہیں پڑتی، خود بخود ہو جاتی ہے، کوئی کشش ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی جانب کھینچتی ہے۔ آج کی رات دونوں کے لیے تکلیف دہ تھی۔ زرناش جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رونا کس بات پر آ رہا ہے۔ کیا پارٹی میں نہیں جانے کی وجہ سے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ عارش کی آنکھوں کی سختی اسے رلا رہی تھی، اس کی بے اعتباری رلا رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسے پارٹی میں جانے سے روک رہا ہے، اور اس کا وہ غصے سے دھاڑنا آخر ایسا کیا کیا تھا اس نے؟ کس بات کا غصہ تھا اسے؟ فائزہ کی مسلسل کال آ رہی تھی جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی، مگر وہ مستقل مزاجی سے اسے کال کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کے اسے کال اٹھانی پڑی۔ فائزہ، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ رو رو کے آواز بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے زرناش، تم رو رہی ہو؟ عارش بھائی نے کچھ کہا؟ فائزہ کو اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا ہے ایک یہی شخص ہے جو میرا اپنا ہے، جس کے ساتھ میں پوری دنیا کے سامنے اعتماد سے کھڑی ہو سکتی ہوں، اور کبھی لگتا ہے وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا اس نکاح کے بولوں کا اثر صرف مجھ پہ ہوا ہے؟ کیا اسے احساس نہیں ہوتا؟ کچھ نم آواز میں وہ
اپنے اندر کی تمام بے چینی نکال رہی تھی۔ فائزہ خاموشی سے سن رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے۔ اچھا ہے، پرسکون ہو جائے گی۔ صبح بہت بوجھل سی تھی، ناشتے کے ٹیبل پر عارش کی نظریں بے چین رہیں مگر وہ نظر نہیں آئی۔ عارش، تمہاری مما کیا کہہ رہی ہیں؟ کل تم نے زرناش کو جانے سے منع کر دیا؟ حسان سجیدہ لہجے میں اس سے مخاطب تھے، جبکہ گہری نظریں بیٹے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے کا بھید کھول رہی تھیں، ماتھے پر تفکر کا جال تھا اور پچھتاوے کا احساس۔ اتنی نازک سی تو وہ ہے، کیا ضرورت تھی اپنی پریشانی میں اس پر غصہ دکھانے کی؟ شاید وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو گیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں عارش، اور میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب ان کے لہجے میں سختی تھی۔ عارش ہاتھ میں ٹوسٹ لیے گہری سوچ میں تھا۔ جی ڈیڈ، اسے لگا شاید سچ بتا دینا چاہیے، اس نے انہیں سچ سے آگاہ کر دیا۔ عارش، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، تم پہلے بھی اس طرح کے معاملات کو سنبھال چکے ہو۔ بی بریو بیٹا، میں جانتا ہوں زرناش کو کھونے کے ڈر سے تمہارا یہ حال ہوا ہے۔ اب کی بار وہ مسکرائے تھے، جس پر عارش بھی خجل سا مسکرا دیا تھا۔ حسان صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے مگر بیٹے کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر سکے۔ عارش اب پرسکون تھا مگر شرمندگی کا احساس بہت تنگ کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو منانا پڑے گا۔ چل بھائی عارش، حسان، اب تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ خود سے مخاطب تھا اور ایک مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کی تلاش میں ڈائننگ ہال سے باہر نکل آیا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہے، کیونکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ لان کے پیچھے پھولوں کی باڑ کی طرف آیا، جہاں وہ اداس سی مرجھائے ہوئے کلیوں کو توڑ توڑ کر پھینک رہی تھی۔ ایک خوبصورت منظر تھا صبح کا۔ عارش کو لگا اس سے حسین صبح اس نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ چکا تھا، جسے اس نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ ہلکے لیمن کلر کی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ کے دوپٹہ پہنے خفا خفا سی سرخ آنکھوں کے ساتھ دل میں اتر رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے لڑو گی نہیں؟ گمبھیر سی آواز میں اس سے مخاطب ہوا اور اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا گیا۔ مجھے کیا حق ہے جو میں لڑوں آپ سے؟ یہ حق تو صرف آپ کے پاس ہے، جب مرضی ڈانٹ دیں۔ وہ خفا سی شکل بنا کر بولی۔ اچھا، کیا معاف نہیں کرو گی اب؟ وہ معصوم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ زرناش نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ کیا وہ رات والا عارش ہے؟ لیکن وہ تو مختلف سا عارش، آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ زرناش زیادہ دیر اس مقناطیسی آنکھوں کی تپش سہ نہ سکی، فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کا گھبرا کر نظر چرانا عارش کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اب جانے لگا۔ پھر مڑ کر اسے مخاطب کیا۔ سنو، وہ دور کھڑی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج رات منگنی میں وہی ڈریس پہننا، یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور زرناش اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا اظہار کسی نے کیا تھا، بلکہ بغیر کچھ کہے دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھ رہی تھی، جس سے وہ دونوں ہی واقف ہو چکے تھے، مگر اظہار میں دونوں ہی کنجوس تھے۔ تم نے یہ حرکت کیوں کی میر؟ تم نے کس کی اجازت سے اس کو کال کی؟ یہ میرا مسئلہ تھا، میں حل کر لیتا۔ تم جانتے ہو تمہاری یہ بے وقوفی ہمارے کتنے خلاف جا سکتی ہے۔ ابھی ایسے ہی وہ نیا DSP پیچھے پڑا ہے عارش کے ساتھ مل کر، اور اب ایک تم نیا تماشا کھڑا کروانا چاہتے ہو۔ دلاور شاہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور پورے کمرے کے چکر لگا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ان کے لاڈلے بیٹے نے جو حرکت کی، اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ دراصل میر شاہ نے خود عارش کو کال کی تھی، جس سے دلاور شاہ بے خبر تھے۔ ابھی مٹھل کے ذریعے انہیں اس بے وقوفی کا علم ہوا۔ میر شاہ نیچے سر جھکائے کھڑا تھا مگر چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو میں کیا کرتا؟ نہیں دیکھا جا رہا تھا مجھ سے، وہ حقیقت سے تو واقف ہو ہی چکا تھا۔ پھر کیا کرتے آپ کے ہی گھر میں وہ آپ کو سنا کر چلا گیا، تب تو کچھ نہیں کر سکے۔ وہ بدتمیزی سے کہتا سامنے پڑی کرسی کو ٹھوک کر مار کر چلا گیا۔ پیچھے وہ دکھ سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو بویا تھا انہوں نے وہ اب کاٹنا تھا۔ حرام کی کمائی کھانے والوں کی اولاد شاید اسی طرح ماں باپ کو رسوا کرتی ہے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی دولت اور شہرت کی پٹی تھی، جو آسانی سے نہیں کھلتی۔ تھوڑی دیر کا غم منا کر وہ اب کسی کو کال ملا رہے تھے۔ غور سے سنو، مجھے عارش حسان چاہیے، مردہ حالت میں۔ آج رات تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ کل صبح کے اخبار میں اس کے مرنے کی خبر دیکھوں، اور ایک ثبوت نہیں چھوڑنا، تاکہ 10 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہے۔ صفاقی سے کہتے وہ کال بند کر چکے تھے۔ عارش اپنے دوست DSP عثمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، بہت ویک پوائنٹ ہے یہ دلاور شاہ کے پیچھے تو میں کب سے لگا ہوا ہوں، مگر کوئی ثبوت نہیں ان کے خلاف۔ عثمان میر شاہ کی کال ریکارڈنگ سن رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے پیچھے پڑنے کا، کچھ دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے یا عدالت باعزت بری کر دیتی ہے۔ یہاں صرف پیسہ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے، مگر مجال ہے جو ایک لفظ نکال لے۔ چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک صرف پیسہ بولتا ہے ان کے آگے۔ عارش مخصوص انداز میں چیئر پر بیٹھا غم و غصے سے بول رہا تھا۔ یہ تو دستور ہے میرے دوست، چلو آج تمہیں اچھا سا لنچ کرواؤں۔ عثمان اٹھتا ہوا کہنے لگا، پھر عارش بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج عارش نے عثمان کی مدد سے اپنی ٹیم کے ساتھ کسی اندرونی گاؤں میں چھاپا مارا تھا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں منشیات کی مختلف چیزیں برآمد ہوئیں، لیکن کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں تک خبر پہلے مل چکی تھی۔ بہت سی تفتیش ہوئی مگر عارش جانتا تھا کچھ دیر بعد دوبارہ اسی جگہ پر یہی کام ہوگا۔ برائی کو ابھی بہت ڈھیل ملی ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ خدا اپنی رسی کھینچتا ہے، اس کے بعد انسان کی سب تدبیر دھری رہ جاتی، لیکن حقیقتاً وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔ بیگم، میں سوچ رہا ہوں اب صاحبزادے کی رخصتی کر دوں۔ ہاں بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، اور میں تو پریشان رہتی ہوں اس کے
काम से, और इसको भी क्या ज़रूरत है हर काम में बीच में आने की। अस्सलाम वालेकुम, लीजिए आपके साहबजादे भी आ गए। शाम में लॉन में बैठे वो लोग चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे जब आरिश भी आ गया, जबकि ज़रनाश अपने कमरे में थी। इसकी नज़रें ज़रनाश को तलाश कर रही थीं। कहाँ हो? ज़रनाश जो अपनी किताबें समेट रही थी, मोबाइल की मैसेज टोन पर मैसेज देखकर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। बालकनी से नीचे देखा तो मसरूफ़ लॉन में मम्मा और डैड के साथ चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। आपके दिल में धड़कते दिल के साथ मुस्कुराहट दबाकर जवाब लिखा। एक हार्ट वाले इमोजी के साथ जवाब आया। यहाँ तो बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, मुझे निकाल दें। ऐसी जगह रहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं जहाँ बहुत सी की गुंजाइश हो। गुस्से वाले इमोजी के साथ जवाब आया। आरिश के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम तो इस दिल की मलका हो, ये तुम्हारी जगह है और तुम्हारी ही रहेगी। धड़कते दिल के साथ आरिश का मैसेज बार-बार पढ़ा मगर जवाब नहीं दिया। आ भी जाओ यार, फिर मैं चला जाऊँगा। पता नहीं फिर कभी देख भी सकूँ या नहीं। अल्लाह ना करे। वो दहल कर लिखती फ़ौरन नीचे लॉन में आई। हल्के गुलाबी कलर के प्रिंट का सूट पहने और शिफॉन के दुपट्टे पहने गुलाबी शाम का ही हिस्सा लग रही थी। आरिश को इसको देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत फ़िक्र है मेरी, मैसेज लिखा, जबकि ज़रनाश ने कोई जवाब नहीं दिया। आओ बेटा बैठो, शुक्र है तुम आ गई, वरना आरिश तो इंतज़ार में बूढ़ा हो जाता। हसन साहब ने शरारत से कहा। आरिश बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे काम से बहुत परेशान है, तुम ही अब इन्हें अपने लफ्ज़ों में समझाओ। क्या हो गया है मम्मा, क्यों परेशान होती हैं? प्यार से वो नाइमा के गिर्द बाहें डाल के खड़ा हो गया। इतने ऊंचे बेटे के प्यार के अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बेटा, मैं चाहती हूँ अब तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, और इन सारे झंझट में रहना आसान नहीं है। यहाँ जंगल का कानून है, जिसके पास पावर है वो सब कुछ है। मम्मा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, बुराई कभी हमेशा नहीं रहती। इनका जवाल लाजमी है और किसी को तो उठाना पड़ेगा ना। अगर हर कोई ये कहकर छोड़ दे कि हमारी फैमिली तो ठीक है ना, हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, काफ़ी हैं, ये मुल्क भी हमारी फैमिली है, इसको जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब ये मुल्क ही खुशहाल नहीं होगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हर फौजी अपनी फैमिली को देखे या अपनी जान दे, छोड़ दे मुल्क को, क्या आप या मैं या कोई भी सुकून से सो सकेगा? इनकी भी तो फैमिली है, इनके भी माँ बाप हैं। अब की बार इसकी आंखें नम थीं। नाइमा भी शर्मिंदा सी बैठी थी। हसन साहब की गर्दन फ़ख्र से ऊंची थी। वो अपने बेटे के तमाम फैसलों में साथ थे। उन्हें यकीन था इनका बेटा कभी गलत नहीं कर सकता, और ज़रनाश इसका दिल अलग बगावत कर रहा था। जिस शख्स से इसे मोहब्बत थी और जो इसकी किस्मत में था, वो इतने अच्छे दिल का मालिक भी होगा, इस बात का अंदाज़ा इसे आज हो रहा था। इतना इतना अच्छी सूरत के साथ नेक सीरत का हामिल इसका शोहर था। मिजाजी खुदा, इसे खुद पर रश्क आया। मोबाइल उठाकर फ़ौरन मैसेज किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। आरिश के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। नज़र उठाकर देखा तो वो नज़रें झुकाए मुस्कुरा रही थी। दिल जो बोझल हो गया था, अब फिर से खिल उठा था। आरिश को अब न्यूज़ ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि इसके शो का टाइम शुरू होने वाला था। मीर शाह क्लब में अपने जैसे ही आवारा और ओबाश दोस्तों के साथ बैठा था, जहां इसी की तरह के एलियन क्लास के चश्मो चराग लंबे बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर नाजायज़ काम बखुशी कर रहे थे। बेशक गुनाह में लज्जत है, ये इनकी ही औलादें थीं, जिन्होंने हराम दौलत कमाने के चक्कर में औलाद को सिर्फ पैसों के अलावा कुछ नहीं दिया था, और वो तरबियत की कमी इनके हर अंदाज से झलक रही थी। हाथों में मशरूब थामे इर्द गिर्द लड़कियों पर बेबकाना नजरें जमाए खड़ा था। मीर शाह, तू तो बहुत बड़ा निकला, इस एंकर को धमकी भी दे डाली, मान गई तुम्हें। इसकी तरह के एक लड़के ने हंसते हुए इसको और बढ़ावा दिया। हाँ, डर गया था वो 2 टके का एंकर, भीगी बिल्ली बनकर माफ़ी मांग रहा था। वो झूठ बोलता हुआ दोस्तों में अपनी धाक बिठा रहा था। ऐसे दिलावर शाह की शोहरत और शख्सियत की वजह से सब इससे दबते भी थे, जिसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठाता था। चलो ना मीर, क्यों बोर कर रहे हो? जीना, जो इनकी बातों से बोरियत का शिकार हो रही थी, मीर शाह को लेकर डांस फ्लोर की तरफ जाने लगी। अब सब वहाँ के तमाम अफराद होश भुलाए गुनाह में मगन थे। मशरूब वाफर मिकदार में पिया जा रहा था। मीर शाह भी अब अपना होश खो चुका था। रात बहुत हो गई तो वो डगमगाते कदम के साथ वहाँ से निकल गया और इसी हालत में गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आज आनिया की मंगनी थी, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आरिश भी आने वाला होगा। जी। जरनाश अपने कमरे में आ गई। इसने इसी दिन वाली फ्राक निकाली जो फेयरवेल में पहनना था, क्योंकि आरिश सुबह बोलकर गया था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बहुत दिल लगाकर तैयार हुई। पहली बार चेहरे पर मेकअप के तमाम लवाजमात इस्तेमाल किए, मगर बहुत सलीके से बालों को ट्विस्ट बनाकर खुला छोड़ा था। आईने में अपना अक्स देखा तो खुद हैरान हो गई। शायद आरिश की मोहब्बत ने उसे हसीन बना दिया था। अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। इसके दिल की रफ्तार अचानक तेज़ हो गई। अब इसे सबके सामने जाने में अजीब सा लग रहा था। पहली दफ़ा इतना तैयार हुई थी, इतने में नाइमा आ गई। जरनाश, तैयार हो गई बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। वो ब्लश हो गई। नाइमा के साथ ही लाउंज में आई, जहां आरिश और हसन तैयार इन्हीं लोगों के इंतजार में खड़े थे। आरिश की नज़र पड़ी तो नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। सलीके से खुले बाल शायद वो पहली बार देख रहा था। बालों
کے لٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتی وہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ تمہاری ہی ہے، بعد میں دیکھ لینا، حسان نے شرارت سے عارش کے کان میں کہا۔ وہ خجل سا مسکرا دیا، کم تو وہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں خصب ڈھا رہا تھا، چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں، آ کر اسے کہا۔ نائمہ اور حسان آگے نکل چکے تھے، حسان صاحب کی کار میں، پیچھے عارش کے ساتھ زرناش۔ عارش نے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ کنفیوز سی بیٹھ گئی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد آج اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی، مگر آج تو دل کے انداز ہی نرالے تھے۔ دونوں کے ہلکی ہلکی میوزک اور بولتی خاموشی اور دل دھڑکا رہی تھی۔ تھینکس، اچانک اس کی گمبھیر آواز نے خاموشی توڑی۔ کس بات کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس کی براؤن آنکھوں میں محبت کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ میری بات ماننے کے لیے؟ اب وہ ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ زرناش کا دل چاہا وہ منع کر دے انہیں پیچھے کرنے سے، اسے بہت اچھے لگتے تھے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کی آواز سے وہ خجل سی ہو گئی، اپنی بے اختیاری پر غصہ بھی آیا۔ کیا ضرورت تھی دیدے پھاڑ کر دیکھنے کی؟ اور ہمیشہ کی طرح دل میں بولتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ عارش کا قہقہ فضا میں گونجا۔ او مائی گاڈ دیدے، کہاں سے سیکھی ہے ایسی باتیں؟ اب وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں اچھا تو لگ رہا ہوں نا؟ اب وہ اس کی طرف مڑا، معصومیت چہرے پر بھر کر اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے واقعی وہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ کچھ کہنے والی تھی کہ آنکھوں میں شرارت دیکھ کر خفا سی ہو کر منہ موڑ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ منہ پھلا کر پوچھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ عارش کے چہرے پر در آئی۔ اف، یہ معصومیت، میری یہ مجال کہ میں آپ کے ساتھ مذاق کروں؟ آنکھیں اب بھی شرارت سے مسکرا رہی تھیں، جبکہ چہرہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے، اب وہ اتر کر اس کے سائڈ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ دونوں اندر جا رہے تھے، دودھیا روشنی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ بہت سی نظریں ان دونوں کے گرد اٹھیں، کچھ رشک بھری تو کچھ حسد بھری۔ پھر آنیا کے پاس جب ساتھ پہنچے تو آنیا دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ آنیا آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنے واقعی پری لگ رہی تھی، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ذوحاب کی محبت نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، عارش کی نظریں تو تم سے ہٹ نہیں رہی۔ دیکھو موصوف کو، بات ذوحاب سے کر رہا ہے اور دیکھ تم میں رہا ہے۔ آنیا نے زرناش کے کان میں سرگوشی کی۔ زرناش نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو واقعی اپنی آنکھوں میں تمام تر محبتیں سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان نظروں کی تاب نہ لا سکی، اس لیے اسٹیج سے اتر گئی اور نائمہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ لوگ واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ لگتا ہے اب رخصتی کی بات کرنی پڑے گی ڈیڈ سے، وہ مسکرا رہا تھا۔ گاڑی میں اب بھی دھیمی سی میوزک لگا تھا۔ زرناش آج تقریب میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اکثر لڑکیوں کی نظریں عارش کو دیکھ رہی تھی، کچھ کو تو افسوس ہوا جب اس کے زرناش سے نکاح کا علم ہوا۔ اتنی وجاہت اور ذہانت سے بھرپور شخص اس کا تھا اور آج وہ مکمل اس کا تھا۔ زرناش کو لگا اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ اسی کا تھا، جو اس نے چاہا وہ اسے مل گیا تھا۔ عارش دھیمی سی مسکراہٹ سجائے آج بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں، منمنا کر اس سے کہنا ہی پڑا۔ ہاں ہاں ہاں، عارش کا قہقہ فضا میں گونجا۔ تو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ مسکراہٹ دبا کر بھویں اچکا کے سوال کیا۔ نہیں تو میں کیوں ڈروں گی؟ ایک ہاتھ سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بار پھر گاڑی میں عارش کا قہقہ گونج رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے لب بھیجے اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ گاڑی کی رفتار تیز کر لی، اتنی تیز کہ زرناش ڈر گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان سی، کبھی اس کو دیکھتی، کبھی اس کی نظروں کے تعاقب میں۔ عارش بغیر کچھ کہے کبھی آگے دیکھتا کبھی پیچھے اور ماتھے پر بل واضح تھے، لب بھیجے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، پھر ڈیش بورڈ کھول کر اپنی گن لوڈ کی۔ یہ کیا ہے؟ زرناش کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ سنو، اپنا سر نیچے رکھو، کیا ہے یہ سب؟ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ ایک بلیک کلر کی کار ان کی گاڑی کے پاس ہی آ گئی۔ میں نے کہا نیچے کرو اپنا سر۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، وہ نیچے ہو رہی تھی کہ اچانک فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ تبھی عارش نے بھی اپنی گن اٹھا لی اور دفاع میں فائر کیا۔ تب بھی زرناش کی چیخ نے اس کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ زرناش، عارش کے چیخنے سے زمین لرز گئی تھی۔ زرناش آنکھیں کھولو، وہ چیخ رہا تھا۔ اچانک ایک اور گولی آئی اور اس کے بازو کو چیرتی نکل گئی۔ وہ اپنی تکلیف محسوس نہیں کر سکا، وہ صرف زرناش کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ باہر نکل کر فائر کیا مگر وہ گاڑی زن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ عارش ہوش سے بیگانہ زرناش کو تھپتھپا رہا تھا۔ اس کے جسم سے بہتا خون عارش کو مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے کسی نے اس کی روح کو تکلیف پہنچائی ہو۔ ایک ہاتھ سے رش ڈرائیو کرتا وہ دوسرے ہاتھ سے زرناش کے زخمی وجود کو اپنے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے بند ہو رہی تھیں۔ اسی ہاتھ سے کال ملائی، آنکھ سرخ ہو رہی تھی، اپنی نہیں زرناش کی تکلیف سے۔ اسے اپنے سامنے تڑپتے دیکھنا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ ہاں عثمان، اٹیک ہوا ہے ہم پر۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر ایک نظر زرناش پر ڈالی، بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ زرناش ٹھیک نہیں ہے، تم ڈیڈ کو بتا دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ہاں میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ کال بند کر کے اب وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپنا نہیں بتایا اس نے، کیونکہ اپنی تکلیف کا احساس کب تھا اسے۔ اس کی تو جان زرناش میں اٹکی تھی۔ وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچا زرناش کو باہوں میں بھر لیا، جبکہ خود
का हाथ खून से लिपटा हुआ था। उस्मान, नाइमा और हसन भी पहुंच चुके थे। आरिश पागल हो गए, वो अपनी हालत देखो, वो बगैर किसी को कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। इसका बहुत खून बह चुका था, वो भी रूम में एडमिट था, मगर सब कुछ निकाल के वो हॉस्पिटल से बाहर था। उस्मान इसके पीछे था, मगर वो कब किसी की सुन रहा था। अजीब सा ही रवैया था, बिल्कुल चुप। नाइमा और हसन ने बहुत कुछ पूछा, कहा, मगर वो सुन कब रहा था। वो तो बस इंतहाई निगहदाश्त में मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ती जरनाश को ही देख रहा था। इसकी आती जाती सांसें सुन रहा था, कुछ याद नहीं रहा था। याद था तो बस इतना कि जरनाश मौत के करीब थी। वो अब गाड़ी में बैठ चुका था। उस्मान ने भी इसके पीछे गाड़ी निकाली, मगर वो आज सबको मात देता हुआ आगे निकल गया और इसी क्लब के पास पहुंचा जहाँ मीर शाह जाता था। आरिश को इल्म था कि वो यहीं होगा। इसने गाड़ी रोकी ही थी कि मीर शाह डगमगाता हुआ वहाँ से निकल रहा था। आरिश ने अपनी गन उठाई और जब चेक किया तो वो खाली थी। शिट, लब भीजे। गाड़ी स्टार्ट की और मीर शाह की गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वो इस वक्त होश में नहीं था। इसे आरिश नजर नहीं आया। उस्मान ने इसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर सुकून का सांस लिया, मगर आगे देखकर इसकी जान निकल गई। आरिश ने मीर शाह की गाड़ी को बुरी तरह हिट किया था। मीर शाह जो पहले ही होश में नहीं था, एक खतरनाक टक्कर से इसके हाथ से स्टीयरिंग छूटा और गाड़ी उड़ती हुई बहुत दूर जाकर गिरी। शिट। उस्मान बाहर निकला, आरिश को बाहर निकाला, अपने साथी को इसकी गाड़ी पकड़ाई और इसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अपने होश में नहीं था, इसे सिर्फ जरनाश का खून नजर आ रहा था हर जगह। आर यू मैड? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? उस्मान चीख रहा था, मगर आरिश कौन सा सुन रहा था। अचानक इसकी नजर पड़ी तो वो बेहोश हो चुका था और शायद इसने अपनी सारी ताकत सर्व कर दी थी। बहुत खून बह चुका था, मगर इसने खुद को होश में रखा, सिर्फ बदला लेने के लिए। उस्मान अफसोस से इसे देख रहा था, जाने दिलावर शाह क्या करते अपने बेटे की हालत देखकर। इससे हकीकतन अपने दोस्त की हालत रुला रही थी। इसकी दीवानगी ने इसे हुला दिया था। अगर जरनाश को वाकई कुछ हो गया तो। उस्मान इससे ज़्यादा नहीं सोच सका, जल्दी से अस्पताल पहुंचा जहाँ नाइमा की हालत अलग ख़राब थी। एक तरफ बेटी जैसी बहू जिंदगी मौत के दरमियान थी और दूसरी तरफ इकलौता बेटा जाने कहाँ चला गया था। आरिश को बेहोशी की हालत में देखकर इनकी चीखें निकल गईं। हसन साहब ने इन्हें संभाला, वो ही थे जिन्होंने खुद पर काबू पाया था। आरिश को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। ज़्यादा खतरनाक बात नहीं थी, सिर्फ खून ज़्यादा बहने की वजह से बेहोशी हुई थी। इसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। अब वो होश में था, मगर अब भी कैफियत पहले जैसी थी। जरनाश के पास जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सपाट सा चेहरा बनाकर इंतहाई निगहदाश्त के पास बैठा था, हाथ में पट्टी बंधी थी। जरनाश का ऑपरेशन हो रहा था, सब दुआ में मसरूफ थे। आरिश सपाट सा बैठा यकटक सामने देख रहा था कि डॉक्टर बाहर निकले। मरीज का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर कमर में लगने वाली गोली पैरालाइज भी कर सकती है। अभी कुछ कह नहीं सकते, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। जरनाश को होश अभी नहीं आया था। हसन और नाइमा को समझ नहीं आया इस खबर पर खुश हों या दुखी, जबकि आरिश यूं ही सपाट सा बैठा था। अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ ना हो, हसन साहब के मुंह से बेसाख्ता निकला। अल्लाह। अचानक आरिश चौंका। हाँ, अल्लाह, दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। वो अचानक उठा, उस्मान फिर इसके पीछे, मगर इसे मस्जिद में जाता देखकर सुकून का सांस लिया। वो अब तक वहीं था। इसने नाइमा और हसन को आरिश की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो पहले ही परेशान थे। नाइमा तो रो रो के हलकान हो चुकी थी, मुसलसल जाए नमाज बिछाए दुआ में मसरूफ थी। कहाँ गया आरिश? हसन साहब ने थकन ज़दा लहजे में पूछा। मस्जिद गया है, उस्मान ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। हसन साहब गहरी सांस ली और वहीं बैठ गए। एक तरफ जरनाश तो दूसरी तरफ आरिश। इसका रवैया उन्हें बहुत खौफनाक लग रहा था, बिल्कुल सर्द और खामोश। या अल्लाह रहम करना, वो दुआगो थे। एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं हो सका तुम लोगों से। दिलावर शाह दहाड़ रहे थे, इसकी बीवी को मार के कौन सा तीर मार लिया तुम लोगों ने। वो और भूखा शेर बन जाएगा। इसके सीने में गोली उतारने का कहा था। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम सबको गोलियों से उड़ा दूंगा, समझे तुम लोग। अब वो परेशान से कमरे के गिर चक्कर लगा रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद जाकर आरिश को गोलियों से उड़ा दें। अचानक इनका फ़ोन बजा। मिट्ठल, कॉल उठाओ और जो भी हो कह देना मैं आराम कर रहा हूँ। मिट्ठल ने कॉल उठाई। अब मुकम्मल बात करने के बाद वो दिलावर शाह को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था इतनी रूह फरसा खबर दिलावर शाह को कैसे सुनाए। क्या हुआ मिट्ठल? किसकी कॉल थी? तुम अस्पताल का क्यों पूछ रहे थे? एक अनजाने खौफ से इनकी आवाज़ कांप रही थी। साईं मीर शाह का एक्सीडेंट हुआ है, ड्रिंक करने की वजह से। अस्पताल से कॉल थी। दिलावर शाह के पैरों से ज़मीन निकल गई। कहाँ है मीर? लेकर चलो मुझे। वो अपने होश में नहीं थे। साईं संभालें खुद को। मिट्ठल ने इनको संभाला। अब वो अस्पताल में थे, जहाँ मीर शाह को बहुत बुरी हालत में लाया गया था। सब यही समझ रहे थे कि ड्रिंक करने की वजह से इसकी गाड़ी टकरा गई, क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो इंतहाई निगहदाश्त में इकलौते बेटे को मरता हुआ देख रहे थे। इंसान अपने मामले में इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता है? कुछ देर पहले ही वो दूसरे के बेटे को इसी जगह देखना चाहते थे जहाँ आज इनका बेटा है, मगर अब तक उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। हम इंसान दूसरों पर जुल्म करते वक्त खुदा को क्यों भूल जाते हैं? खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब इंसान को अल्लाह दौलत, शोहरत और ताकत देता है तो इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है। लेकिन आज वो बेबसी की तस्वीर बने अपने इकलौते बेटे को मशीनों से जकड़ा हुआ देख रहे थे और इनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। जो दूसरों को खून के आंसू रुलाता था, वो आज खुद रो रहा था। अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। कितनी अजीब बात है ना, जिसने पूरी ज़िंदगी खुदा को नहीं माना, वो आज इसी खुदा से दरियाफ्त कर रहा था, इसी खुदा से फरियाद कर रहा था। कल तक वो यही समझते थे ये ताकत दौलत इनकी मेहनत की बदौलत है और इन्होंने खुद हासिल की, और आज वो दौलत और ताकत के होते हुए भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ दुआ की।
दुआ तो आरिश भी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, फरियाद कर रहा था। वो मस्जिद में बैठा नमाज पढ़कर अब दुआ करने बैठा तो इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी ले ले मगर इसे बचा ले। अल्लाह पाक वो तो मासूम थी, इसका तो कसूर भी नहीं था। मेरी वजह से वो तकलीफ़ में है। यही चुभन इसे रुला रही थी कि आरिश की वजह से जरनाश को तकलीफ़ सहनी पड़ रही थी। अल्लाह इसे कुछ ना हो। रो रो कर जब वो थक गया तो उठ गया मगर अब दिल में एक सुकून सा उतर गया था। पहले वाला सख्तपन ख़त्म हो चुका था। रो के दिल हल्का हो चुका था। अब वो सुकून महसूस कर रहा था और अल्लाह से मांग के दिल मुतमईन हो चुका था। अब वो हॉस्पिटल जा रहा था। सुबह की रोशनी निकलनी शुरू हो चुकी थी। अंधेरी और खौफनाक रात ढल चुकी थी। डैड अब आप और मम्मा जाकर आराम कर लें, मैं हूँ यहाँ पर। अब वो हसन साहब के पास था। हसन साहब ने बेटे को नॉर्मल हालत में देखकर सुकून का सांस लिया। वो जाना नहीं चाहते थे मगर नाइमा की हालत देखकर उन्होंने जाने का फैसला किया। वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। वो दोनों घर जा चुके थे। आरिश थका हुआ बेंच पर बैठ गया। आरिश हौसला करो, अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ हालात कैसे हैं। पता नहीं मीर शाह जिंदा भी है या नहीं। दिलावर शाह को अगर कुछ भी पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगा। उस्मान की बात से रात के तमाम वाकयात इसे याद आ गए कि कैसे इसने मीर शाह की गाड़ी को हिट किया। एक करब इसके चेहरे पर लहरा गया। मीर और दिलावर का नाम याद करके उस्मान जा चुका था। अब वो अकेला था। डॉक्टर ने आकर कहा, आप देख सकते हैं इनको, मगर वो होश में नहीं है। आरिश अंदर आ गया जहाँ वो मशीनों में जकड़ी से नींद सुकून से आंखें बंद किए थी, इस बात से बेखबर कि इसकी जान किसी के लिए कितनी अहम है। इसे इस बात में इसी हालत में देखकर आरिश की आंखें फिर बरसने लगी थीं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अभी तो मुझे तुमसे इजहार के खूबसूरत अल्फाज भी कहने थे। अभी तो मुझे तुमसे बहुत से वादे करने थे। फिर अभी हमें एक साथ बहुत दूर तक चलना था। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम उठोगी। इसका इस तरह कहना वहाँ मौजूद नर्स और डॉक्टर को अश्क बार कर रहा था। नर्स हैरान थी। इतना खूबरू शख्स का इस आम सी लड़की के लिए रोना इसे रश्क में मुब्तला कर रहा था। दिलावर शाह जो सुबह आरिश मरने की खबर सुनना चाहते थे, आज हर न्यूज़ चैनल चीख चीख कर एक ही खबर सुना रहा था। मशहूर सियासतदान दिलावर शाह के बेटे का ड्रिंक की हालत में एक्सीडेंट। दिलावर शाह इकलौते बेटे के गम में नढाल। हम आपको बताते चलें कि इस बार मीर शाह भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। क्या इनकी इस हालत के बाद वो दोबारा सियासत में इन हो सकेंगे? किसी को भी इनके गम की परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ ये जानने के तजस्सुस में था कि मीर शाह को कुछ भी हुआ तो दिलावर शाह की सियासत किस हद तक मुतासिर होगी। दिलावर शाह के पास मीडिया का एक जमे गफीर था। सबके हाथ एक चटपटी खबर आई थी कि मीर शाह ड्रिंक करता हुआ गाड़ी चला रहा था। दिलावर शाह कुछ घंटों में ही नडाल हो चुके थे। वो किसी के भी सवाल के जवाब देने की हालत में नहीं थे। मीडिया खुद कियास आराई करता रहा, यहाँ तक कि कुछ चैनल मीर शाह के कारनामे भी दिखाने लगा था। दिलावर शाह जुबान में कफल डाले बैठे थे। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। मीडिया जो इनके रौब से डरता था आज इनकी खामोशी में शेर बना बैठा था। ज़ुबैर, बिलाल, आनिया और ज़ुहाब भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और आरिश का अ, हौसला बुलंद कर रहे थे। आनिया की भी जरनाश की हालत देखकर चीख निकल गई थी। कल तक ये मासूम लड़की कितनी खुश थी। ज़ुबैर, बिलाल और ज़ुहाब आरिश के पास थे। इनके पास अल्फाज नहीं थे मगर आरिश का इनको देखकर हौसला बढ़ा था। इसके पास बहुत से लोग थे जो इसके अपने थे, इसके साथ खड़े थे। एक तरफ दिलावर शाह हॉस्पिटल में तनहा अकेले बेटे की बेबसी देख रहे थे। कोई भी इनको दिलासा देने नहीं आया। मीडिया भी चीख चीख कर हलकान हो चुका था। अब सब ठंडा पड़ चुका था। किसी को परवाह नहीं थी। वो सोचों में घिरे बैठे थे कि डॉक्टर ने जानलेवा खबर सुनाई। मुआवजा हो गया है दिलावर शाह, जो आपका बेटा जिंदा है, मगर सॉरी हम इनकी टांगों को नहीं बचा सके। अब ये अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर जा चुका था मगर दिलावर शाह का जहन वही अटक चुका था कि इनका बेटा हमेशा के लिए माजूर हो चुका है। दूसरों की औलादों को मौत के घाट उतारने वाले को आज अपनी ही बेटे की तकलीफ तड़पा रही थी। दूसरों के लिए पत्थर जैसा शख्स अपने बेटे के लिए पिघला हुआ मोम बन गया था। मीर शाह वहीं बैठकर धाड़े मार मार के रोने लगे। खुद को ताकतवर समझने वाला शख्स बेबसी की जीती जागती तस्वीर बना था। इर्द गिर्द के लोग रहम की नज़र इस शख्स पर डाल के आगे बढ़ रहे थे जो दुनिया का कमज़ोर तरीन शख्स लग रहा था। आरिश मुसलसल हॉस्पिटल में मौजूद था जबकि नाइमा और हस्सान भी आ चुके थे। कुछ खा लो आरिश, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। ज़ुबैर आरिश के लिए सैंडविच भी ले आया था। नाइमा और हस्सान को ज़बरदस्ती खिलाकर अब इसको खिलाने पर बज़िद था मगर आरिश के हलक से कुछ नहीं उतर रहा था। वो कैसे खा लेता, इसे बोलना बेकार था। इतनी ही देर में डॉक्टर नर्स जरनाश के रूम से भागती हुई डॉक्टर को बुलाने गई। ये देखकर सबकी जान अटक गई। डॉक्टर फ़ौरन कमरे में गए लेकिन जब वापस आए तो इनके जुमले से सबकी चेहरों पर खुशी दौड़ गई। मुबारक हो, 24 घंटों से पहले ही पेशेंट को होश आ गया है। अब इनकी जान खतरे से बाहर है। हाँ मगर कमर में गोली लगने की बिना पर इनको चलने में अभी थोड़ी मुश्किल होगी, मगर ये इन पर है और फैमिली पर कि कितनी जल्दी रिकवर करती हैं। वो लोग इजाज़त लेकर कमरे में मिलने गए मगर आरिश नहीं गया। इसकी आंखों आंखों में नमी थी। वो सीधा मस्जिद गया। शुक्राने भी तो अदा करने थे।
जिससे मांगा था, जिसने इसकी सुन ली थी। अब तशक्कुर के आंसू थे जो नहीं रुक रहे थे। कमरे में हर फर्द के चेहरे से खुशी झलक रही थी। इतनी मोहब्बतें देखकर इसकी आंखें खुशी से नम हो गई, लेकिन निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। सब जा चुके थे, रात होने को आई थी। नाइमा बेगम इसके पास ही थी। अभी भी वो सूप लेकर आई थी। वो आरिश का पूछना चाहती थी, मगर एक झिझक सामने आ रही थी। दिल अलग उदास हो रहा था। सब तो कह रहे थे आरिश के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। इसे याद आ रहा था ज़ुबैर कितना तंग कर रहा था इसे। भाभी, आपने मेरे दोस्त को बिल्कुल मजनू बना दिया। सब हंस रहे थे कि आरिश किस तरह पागल हो रहा था इसके लिए। वो फ़ख्र महसूस कर रही थी, मगर अब लग रहा था कि शायद सब इसे बहला रहे थे। आरिश को तो इसकी फ़िक्र ही नहीं थी। क्या सोच रही हो बेटा? बस कुछ दिन में ही तुम घर चलोगी, नाइमा बेगम प्यार से इससे कह रही थी, और इसके आंसू थे कि निकलने के तैयार थे। आरिश की बेरुखी से इसे रुला रही थी। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। वो जा चुकी थी। जरनाश की आंखें बंद होने लगीं। वो गनूदगी में चली गई। कुछ ही देर में इसे चारों तरफ खुशबू महसूस हुई। इसने आंखें खोली तो देखा बेड के चारों तरफ ताज़ा फूलों के गुलदस्ते और विश कार्ड थे। हर फूल के गुलदस्ते में कार्ड थे। पहले इसने चारों तरफ निगाहें की कि कोई आया था यहाँ। इसने कार्ड उठाया तो वो कोई लिफाफे की शक्ल में था, मगर जब खोलने लगी तो पर्द दर पर्द वो खुलता गया और चारों तरफ छोटे छोटे लिफाफे बने थे। जैसे ही वो जिस लिफाफे को खोलती, इसमें से इसकी हर मौके पर ली गई तस्वीर निकलती। वो मुंह पर हाथ रखकर खुशगवार हैरत से हर तस्वीर को देख रही थी। ये तस्वीरें कब ली गईं इसे पता नहीं चला। एक में वो लॉन में किताब पढ़ रही थी, और एक इसका मैसेज पढ़कर जब वो मुस्कुराई थी, और एक वो टीवी देख रही थी उदास सी, और कुछ आनिया की मंगनी वाले दिन की शर्माती हुई, दुपट्टा सेट करती हुई, इस अपने बालों को पीछे करती हुई। उफ, हर एक लम्हे की तस्वीर थी। इसके दिल की धड़कन अचानक तेज हुई थी। लब्बों पर खुलती हुई मुस्कुराहट थी, और कार्ड के पीछे लिखा था, मेरी ज़िंदगी अब जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारा ये पागल शोहर अब नहीं रह सकता। सॉरी माय डियर वाइफ, मैं मिलने नहीं आ सका। अब रुखसती में ही मुलाकात होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर अभी तुमको देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूंगा। अपना ख्याल रखना। उफ, वो तहरीर पढ़कर गुलनार हो गई और कार्ड को सीने से लगा लिया। मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता कर लिया था। मित्तल ने बहुत मुश्किल से दिलावर शाह को संभाला। वो मीर शाह से मिलने गई तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। सर भी पट्टी से मुकम्मल जकड़ा था, आंखों के पास भी जख्म थे। खूबसूरत चेहरा बिखर कर हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। दिलावर शाह के एक बार फिर आंसू निकल गए, जबकि मीर शाह पर दौरे पड़ रहे थे। वो खुद की इस हालत को कबूल नहीं कर पा रहा था। हाथों से हर चीज़ उठाकर फेंकता, चीखता कि पूरा स्टाफ जमा हो जाता। इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर्स ने अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि वो अस्पताल के स्टाफ को नुकसान पहुंचा रहा था। दिलावर शाह इकलौते बेटे के इस गम में निढाल हो चुके थे। अब ना सियासत में हिस्सा लेते, ना किसी चीज़ में। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा ले लिया था। सिर्फ बंद कमरे में पड़े रहते, और मीर शाह एक मेल नर्स के रहमो करम में चीखता रहता। जरनाश हॉस्पिटल से आनिया के घर आई थी, क्योंकि रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी। रुखसती होकर वो हसान के घर आती। आरिश से अब तक मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रोज़ विश कार्ड लाजमी मिलता है। इसको चलने में अब भी मुश्किल होती, व्हील चेयर में होती या किसी के सहारे खड़ी हो जाती। ज़्यादा चलना मुश्किल था इसको। इस बात का किसी ने एहसास होने ही नहीं दिया। भले से ये वक्ती था, मगर वो परेशान होती भी तो कोई ना कोई इसके पास होता कि इसे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आनिया तो इसके पास ही थी। बिलाल और जुबैर भी दिन का ज़्यादातर हिस्सा इसके साथ ही गुजारते। कभी तीनों की लड़ाई होती, कभी तीनों माजी को लेकर बैठ जाते, कभी किसी की शामत आती, कभी किसी की। वो हंस हंस कर पागल हो जाती, और आनिया इसकी मुस्कुराहट को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेती और आरिश को व्हाट्सएप पर भेज देती थी, और आरिश का इसकी हर तस्वीर को अपने जहन में नक्श कर लेता। इस तरह रुखसती का दिन आ पहुंचा। जरनाश महरून और फान कलर के लहंगे में वाकई कोई नाजुक सी परी लग रही थी, तो दूसरी तरफ आरिश भी हल्की सुरमई कलर की शेरवानी में गजब ढा रहा था। जब जरनाश को स्टेज पर लेकर आया गया तो आरिश लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। कितने दिन बाद देख रहा था दुश्मन जाँ को, और इतनी हसीन लग रही थी कि मंजर की नज़र हटाना मुश्किल था। इसने बढ़कर जरनाश को थामा। कोई नहीं पहचान सका कि जरनाश को चलने में मुश्किल हो रही है। वो साई की तरह साथ साथ था इसके। आज लग रहा था जैसे जरनाश और आरिश बने ही एक दूसरे के लिए हैं। दोनों एक साथ अच्छे लग रहे थे, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। मेरी ज़िंदगी बनने का बहुत शुक्रिया। इसके कान में सरगोशी करता हुआ वो सीधा हुआ। जरनाश को लग रहा था इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। शायद खुदा ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया था। शुक्र वो जितना शुक्र अदा करती कम था। 5 साल बाद। मिसेस आरिश, आप कब तक फ्री होंगी? वो क्लास लेकर बाहर निकल रही थी कि आरिश के मैसेज से इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आरिश के मैसेज से इसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ मिस्टर आरिश। मुस्कुराहट के साथ जवाब देकर वो अब कॉलेज से निकल रही थी। जानती थी वो गेट पर होगा। जरनाश एक कॉलेज में लेक्चरार थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि जरनाश के अंदर एतमाद पैदा हो। आरिश चाहता था इसकी
غیر موجودگی میں بھی وہ ہر حالات کا سامنا کر سکے۔ وہ گھبرائی سی لڑکی آج عارش کے ساتھ پراعتماد سی پوری دنیا میں سر اٹھا کے جی رہی تھی۔ السلام علیکم، سلام کرتی جیسے ہی اگلی سیٹ پر بیٹھی ویسے ہی کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مشتبہ بیٹے آپ ہیں؟ ماما نے پہچان لیا۔ اب اس نے مسکرا کر اپنے 4 سالہ بیٹے کے ہاتھ چومے۔ پاپا، ماما نے پھر پہچان لیا۔ اب وہ خفا سا بیٹھ چکا تھا۔ عارش اور زرناش اس کی حرکتوں پر مسکرا رہے تھے۔ میری پرنسس کہاں ہے؟ وہ اپنی دادی اور دادا کے ساتھ آپ کے لیے سرپرائز کیک بنا رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ میرے لیے کیک بنائے گی؟ زرناش ہنس رہی تھی۔ پاپا، یہ سرپرائز تو نہیں ہوا، آپ نے بتا دیا۔ ہاں بالکل میرا بچہ، تمہارے پاپا کا سرپرائز ایسا ہی ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹے مل گئے۔ گھر چلو، میری پرنسس میرا ساتھ دے گی۔ تینوں ہنس رہے تھے۔ گھر آ چکا تھا۔ جیسے ہی زرناش نے قدم رکھ کے چاروں طرف پھول کی بارش ہو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ عارش بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ زرناش کی آج برتھ ڈے تھی۔ آنیہ بھی سہاب کے ساتھ موجود تھی، جبکہ 2 سالہ مسفرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیک کھلا رہی تھی۔ نائمہ اور حسان خوشی سے اپنی خوبصورت فیملی کو دیکھ رہے تھے۔ زرناش اور عارش ساتھ کھڑے تھے اور عارش کی سرگوشی آج بھی جاری تھی۔ گزرتے وقتوں نے دونوں کی محبت کو اور بڑھا دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے۔ ہم کسی کو اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا اس کے نصیب کا ملتا ہے۔ دولت بھی، شہرت بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیتا ہے تو واپس بھی لیتا ہے۔ ختم شد قسمت کی لکیروں میں۔ اس قلم فلزہ ارشد۔